الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منا عذاب أليم. آج ہم اور آپ اس چیز پہ گفتگو کریں گے. اس سے آگے بڑھنے سے پہلے دو تین چیزیں آپ کے سامنے اور آپ کے ساتھ رکھیں. کل ہم نے بہت سارے طلباء سے لکھنے کے لیے کہا تھا، تو شاید کچھ لوگوں نے لکھا ہے، کچھ لوگوں نے نہیں لکھا. جنہوں نے لکھا ہے وہ ہمیں دیں گے. اس کے بعد ہم آج آپ اس کا مطالعہ کریں گے. انشاءاللہ کل آپ کو اس کو واپس کر دیں گے. اور یہ صرف اس لیے ہے، ایک طالب علم کا پوچھا کہ مولانا کیا کچھ نمبر والا دیں گے؟ میں کہا اس لیے ہے کہ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے کتنا سمجھا، تاکہ آگے آنے والا جو سیشن ہو ہم اسے اس سے زیادہ بہتر سے بہتر بنا سکیں. آپ کو سب بھی موقع ہے کہ کسی نے نہیں لکھا، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو اگر ہماری نے کہیں ایسی نظر آئی ہو کہ جس کو آپ اور سمجھتے ہو کہ اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، تو آپ تنقید کی نگاہ سے لکھیے، اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں. ہم آپ کسی کے ساتھ اس چیز کو شیئر نہیں کریں گے. کچھ طالب علم سمجھے کہ شاید ہم کسی استاد کو یا مدرسے میں کسی بڑے کو اس کو شیئر کریں گے تو گھبرا رہے ہیں کہ کیا لکھوا رہے ہیں. آپ اپنے داستان لکھ کے دے دیجیے. ایک صفحے میں جیسے انہوں نے اس طالب علم نے لکھ کے دیے. ایک بار طالب علم نے ہمیں میسج بھی کیا، ہم نے اس کا میسج پڑھا، اس نے انگریزی میں لکھا، ہمیں خوشی ہوئی. آپ بھی لکھ کے دیجیے، کوئی حل نہیں، اور ہم کل آپ کو انشاءاللہ اس کو پڑھ کے واپس کر دیں گے. یا کسی طالب علم کو دے دیں گے وہ آپ کو واپس کر دیں گے. کل ایک طالب علم نے ہم سے کہا کہ مولانا ان کے جو عقائد ہیں اس کو ذرا تھوڑی دیر دوبارہ سے روشنی ڈال دیجیے گا تاکہ وہ ہمارے ذہن میں آ جائے. ہم تھوڑا سا خلاصہ کلیہ قائد کر دیں انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے ہم ان علماء کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے خاص طور سے رد صغیر میں رد عیسائیت کے لیے اور عیسائیت کے طوفان کو روکنے کے لیے بڑا کام کیا. ان کی کچھ کتابوں کا تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے، ان کی کچھ کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان کتابوں کی فہرست آپ کو بتائیں گے جس طرح آپ آگے مطالعہ کر سکیں. کیونکہ ابھی ہمارا 2 دن کا نظام اور ہے، ایک ابھی ہمیں جانا ہے انشاءاللہ. جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. اور اگلے جو 2 دن کا ہمارا باقی بچا ہے حساب، ایک چھوٹا سا حصہ ہم نے تک کیا ہے، اس کے لیے آپ کو کم سے کم کچھ کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو 2 دن آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتے. ان کے جو عقائد ہیں عیسائیوں کے، جس کا ہم نے تھوڑا سا آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، غالب اچھا خاصا آیا تھا، دوبارہ کریں گے. تو ان عقائد کا ہم وقت پڑھانا چاہتے ہیں، اور تھوڑا تاکہ آپ کو رسمی کرنے میں آپ کو سمجھ میں آ جائے جو عقائد باقی ہیں. ابھی تو صرف ہم نے عقائد آپ کو پڑھائے ہیں، ہم نے اس کے رد بھی پڑھایا ہے. ہم نے صرف عقائد پڑھائے ہیں اور صرف ہم نے بغیر دلیل کا اس کا رد پڑھایا ہے. اور خاص طور سے ہم نے بار بار کہا کہ جب آپ عیسائیت پہ کام کرتے ہیں، حالانکہ کسی بھی غیر مذہب پہ کام کریں تو بغیر حوالے میں کبھی کوئی بات کہانی کی شکل میں نہ سنائیں. ہر چیز اپنے حوالے کے ساتھ ہونی چاہیے. یہی نبی کی شان ہے. لیکن عیسائیت کے ساتھ ہم خاص طور سے کہتے ہیں جب بھی آپ کسی عیسائی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے پاس سارے حوالے موجود ہوں. تو کل ہم نے صرف آپ کو تعارف پڑھایا ہے، یہ تعارف کرایا ہے، ہم نے اس کا رد نہیں پڑھایا. رد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ چیزوں کا مطالعہ کر لیں. انشاءاللہ جب اگلی مجلس میں آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے سالانہ امتحان سے پہلے تو ہم اس کا رد پڑھائیں گے. اور ایک خاص طور سے ایک چیز کہ بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی جو پیشن گوئیاں ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ میں ہو یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہو، انشاءاللہ اس کو پر ہم روشنی ڈالیں گے. تو اس کے لیے بھی آپ کا کچھ پڑھنا ہونا ضروری ہے. اب مذہب موضوع کی طرف آتے ہیں. عیسائیوں کے لیے جو بنیادی عقیدے ہیں 4 ہم نے آپ کو لکھوائے تھے. کوئی طالب علم پڑھ کے سنائے، کوئی ایک پڑھ کے سنائے. نہیں اس کو مترادف پڑھیے. ٹرینٹی، ہم کہہ رہے ہیں ایک طالب علم پڑھ کے سنائے تھے، ایک جس کی آواز اگر دے دو وہ پڑھ کے سنائے. ٹھیک ہے، یہ جو 4 عقیدے انہوں نے پڑھ کے سنائے ہیں، نمبر 1 تثلیث یعنی ٹرینٹی، نمبر 2 عقیدہ حضور تجسم، نمبر 2 نمبر 3 عقیدہ رسولیت، اور نمبر 4 عقیدہ کفارہ. یہ 4 عقیدے جو ہیں، یہ 4 عقیدے جو ہیں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ کے انٹر لنکڈ ہیں، یعنی ایک دوسرے سے متصل
चीज को भी नहीं समझा और दूसरे को समझना भी आपके लिए मुश्किल होगा। खास तौर से तस्लीम का अकीदा और खास तौर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दिए जाने का मजरूबा जो वाक़या है, उसके ऊपर पूरी ईसाइयत का कहिए पॉल के बनाए हुए मजहब की बुनियाद टिकी हुई है। समझ में आ गया आपको? ट्रिनिटी को समझना इसलिए बेइंतहा जरूरी है कि अगर आप ट्रिनिटी को समझ जाएंगे, समझने से मतलब मुराद हम नहीं कहना चाहते, आपको समझ जाएंगे वो ट्रिनिटी से क्या मुराद लेते हैं, आप उसको समझ जाएंगे और आप ये समझ जाएंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूली पर मौत नाउज़ुबिल्लाह नहीं हुई, उनके हिसाब से वो कहते हैं कि हुई, तो आप पूरी ईसाइयत को रद्द करने के काबिल हो सकते हैं। इसलिए बड़े गहरे अकीदे हैं, इसलिए हम इसकी थोड़ी सी तशरीह आपके सामने दोबारा से करते हैं। देखिए ईसाइयों के साथ मसला ये है कि अगर कोई ये कहते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी उनको भी है और इनके मजहब को पढ़ने वालों को समझने वालों को परेशानी आती है, वो ये है कि अगर कोई ये कहते हैं कि तस्लीस है, अगर कोई कहे कि तस्लीस के जरिए हम तीन खुदा मानते हैं तो मुश्किलों में शामिल हो गए, मसला खत्म हो गया, फिर उनको समझना मुश्किल नहीं है। और अगर वो ये कहते हैं कि हम मुवाहिद हैं तो उनको समझना भी मुश्किल नहीं है, ये भी मुवाहिदीन में शामिल हो गए। लेकिन उनके साथ जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये कहते हैं कि हम ट्रिनिटी को मानते हैं मगर हम मुवाहिद हैं, हम ट्रिनिटी को मानते हैं मगर हम मुवाहिद हैं। ऐसी है कि हम खाना खाते हैं मगर हम भूखे हैं, हम पानी पीते हैं मगर हम प्यासे हैं। तो इज्तिमाई ज़िद्दत की बात हो गई। इज्तिमाई ज़िद्दत अगर आपने मसले पढ़ी हो तो आपको पता होगा इज्तिमाई ज़िद्दत जो है वो मुहाल होती है। इज्तिमाई ज़िद्दत जो है वो मुहाल होती है, एक ही वक्त में एक शय में आग लग रही हो और वो चीज जो है ठंडी भी हो रही हो, ये मुमकिनात में से नहीं है। तो ईसाइयत के साथ जो सबसे बड़ी परेशानी है वो अकीदे के एतबार से अपने आप को मुवहिद कहती है मगर ईमान के एतबार से तस्लीम में यकीन करती है और इसके साथ साथ वो इस्रार करना चाहती है और लोगों से कहती है कि हम मुवाहिद हैं। तो लोग कहते हैं ठीक है मुवाहिद सीधे सीधे तौहीद को मान लो, लेकिन तौहीद की जो तशरीह वो करते हैं वो तस्लीम की शक्ल में करते हैं। बात समझ में आ रही है? तौहीद की तशरीह जो है वो क्या को नहीं है, तो पूरी कायनात में मानी जाती है कि एक इज इक्वल टू 3, कि अगर आप तीन शख्सियत एक साथ रख देंगे तो वो तीन हो जाएंगे। कहते तीन नहीं हुई, शख्सियत एक है। ये उनके पास इतनी बड़ी परेशानी है कि जिसकी वजह से दुनिया में कोई भी उनकी इस बात को नहीं समझ सकता। और क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि उस वक्त ये सिर्फ सेंट पॉल ने एक सिक्का खेला था, उसका सिक्का चल गया और चलने के नतीजे में जो कामयाबी उसको हासिल हुई, उस कामयाबी से ये आज तक काम नहीं कर सके। आप समझ लें, आप मार्केट में कोई आदमी माल बेच रहा हो और सामान बेचने में गलती से एक बार उससे गलत आइटम बिक जाए और वो गलत आइटम इतना चल जाए आप वो चाहते भी उसको मार्केट से वापस नहीं ले सकता। यही हाल इनके साथ हुआ कि सेंट पॉल ने इन चीजों का मुताला किया और मुताला करने के नतीजे में उसने मार्केट में नया अकीदा पेश किया और वो नया अकीदा इतना पॉपुलर हो गया कि
کیونکہ حکومت کی طاقت کے سامنے بہت کم چیزیں ہی بچ پاتی ہیں اور انہوں نے ہار مان لی۔ ایک چیز آپ یہ سمجھ لیں، اب رہی اس تصویر کی تعریف کی بات، تو تصویر کی تعریف کے لیے ہم نے ابھی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی اور ہم آپ سے کہتے ہیں آپ اس آیت کے لیے تمام تفاسیر دیکھنا شروع کریے۔ کم سے کم ابتدا کریے آپ تفسیر ماجدی سے، اور تفسیر ماجدی سے ابتدا کرنے کے بعد آپ سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کیا پڑھیں گے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں اور اس آیت میں قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ کے ذیل میں کیا لکھا ہے؟ اور انہوں نے اس آیت کے ذیل میں کیا لکھا ہے؟ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الْهَوَىٰ۔ اللہ اشارہ کر رہا ہے ان کے پاس صرف ٹکر کے 3 بچے تھے، ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں، ان کے پاس کوئی حقیقی علم نہیں، ان کے پاس کوئی کنفرم نالج نہیں، الا اتباع الهوىٰ، صرف تصورات ہیں، خیالات ہیں، باتیں ہی باتیں ہیں۔ وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ۔ ان آیات کے ذیل میں ہمارے ائمہ نے کیا لکھا ہے، کشاف نے کیا لکھا ہے، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے، اور جو دیگر ائمہ ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ سمجھ میں آ گیا نا بات؟ اب آتے ہیں تصنیف کی تھوڑی سی تعریف۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی تصنیف کے بارے میں، آپ دوبارہ سے اپنی توضیح کر دیں۔ تصنیف سے سارے عیسائی فرقے اپنے تمام اختلاف کے باوجود کچھ چیزوں پر مختلف ہیں، وہ کچھ چیزوں پر یعنی متفق ہیں۔ وہ کیا ہے کہ تصنیف کے اندر 3 قانون یا 3 اقانیم ہیں۔ اقانیم کیا چیز ہوتی ہے؟ اقانیم کا ترجمہ کس سے کریں گے آپ؟ کس سے کریں گے؟ جوہر سے کہیں گے، ہم عام زبان میں سے پرسن سے کرتے ہیں، لیکن مسئلہ پھر وہی لوٹ کے آ جاتا ہے۔ جب ہم 3% کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر مسئلہ ہوا 15 ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ 3% نہیں ہے، 3 سبسٹنس ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ جوہر ہے، اب جوہر کیا چیز ہے وہ آپ بات میں سمجھیے گا، لیکن اس کے اندر وہ جو 3 حیثیتیں آپ کہہ دیجیے، ان 3 حیثیتوں سے ایک حیثیت کا نام تو باپ ہے، یعنی فادر، پہلی حیثیت، یا جسے اول بھی کہتے ہیں کبھی کبھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ دوسری حیثیت، یہ دوسری شخصیت، یہ دوسرا قانون، یہ دوسرا پرسن اس کے اندر جو ہے وہ سن کا ہے، سن یعنی ولد۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی۔ ہم لفظ سن اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان کی آفیشیل ڈکلیریشن آف فیتھ میں، ان کے آفیشیل ایمان مجمل ایمان مفصل میں لفظ سن استعمال ہوا، اس لیے ہم سن استعمال کر رہے ہیں۔ کیونکہ کبھی بھی آپ کسی مذہب کو پڑھیں اس کی اصطلاحات کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، ان کی اصطلاحات کو بعینی سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اپنی ان اصطلاحات سے کیا مراد لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب جو کسی حیثیت اس کے اندر ہے، کسی حیثیت سے مراد یعنی ہولی اسپرٹ، روح القدس ہے۔ اب یہ دونوں کیا ہیں؟ ان کو اصل ٹھوکر لگی ہے صفات ہے۔ اگر آپ ہمارے دین کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت کی جو صفات ہے، اگر آپ صفات کو اور ذات کے فرق کو سمجھ لیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ پڑھتے ہیں تو الرحمن اور رحیم کیا ہے؟ حالانکہ تفسیر تو ہمارا گھنٹہ نہیں ہے، لیکن ہم صرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ دونوں صفت ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے، اور اللہ کی ہے۔ ان سے غلطی کیا ہوئی کہ جیسے اللہ نے کہا کہ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک، تو یہ کہتے ہیں کہ کہنے والا قائل تو اللہ ہے، کہنے والا قائل کون ہے؟ اللہ ہے۔ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ قول کا اطلاق کس پر ہو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام، اور حضرت عیسیٰ کون ہو قائل ہے؟ مقبول کہہ لیجیے، جتنے مخاطب تو ٹھیک ہے۔ اب حضرت اللہ نے جو ان کی گفتگو حضرت عیسیٰ سے کہی، یہ جو بات کہی، یہ جو جملہ کہا، یہ جو لفظ کہا، ان کے بیچ میں جو گفتگو ہوئی وہ کلام ہے یا قول ہے۔ قائل اللہ ہے، قول ان کے درمیان میں ہے، اور ایک مقبول ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ ان سے غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے ان تینوں چیزوں کو اللہ کے مساوی، ان دونوں کو اللہ کے مساوی پر تسلیم کر لیا۔ اور کیوں تسلیم کر لیا؟ کیونکہ پول نے جب وہاں مصر میں مطالعہ کیا تھا تو اس نے یونانیات کو پڑھا تھا، یونانی فلسفے کو، اور یونانی فلسفے کے اندر کیا اچھا کو آ جاتی ہے اس یونانی فلسفے کو سمجھنے میں۔ جب اس نے پول نے یونانی فلسفے کو پڑھا تھا تو یونانی
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से एक मुल्क का मुनाजरा हुआ, हम आपको सुनाएं, शायद आपने सुना भी होगा। तो इमाम साहब का मुनाजरे के लिए बहुत दिनों से कह रहा था। इमाम साहब पहले तो तैयार नहीं थे, फिर इमाम साहब राजी हो गए। जब इमाम साहब राजी हो गए तो इमाम साहब ने उसके साथ वक्त मुतय्यन कर लिया कि फलां तारीख को मुनाजरा होगा, जो भी वक्त तय किया होगा। वक्त तय हो गया, मकाम तय हो गया, इमाम साहब ने कहा ठीक है पहुंच जाएंगे। लोग जमा हो गए, लोग जमा हो गए, मुसलमान भी आ गए, वो भी आ गया, अपना ग्रुप भी लेके आ गए। इमाम साहब नहीं पहुंचे, इंतजार होता रहा, इंतजार किया जाता रहा था, काफी ताखीर से इमाम साहब पहुंचे। देखिए इल्म जब अल्लाह किसी को देता है, मेहनत के साथ देता है, तो उसकी सलाहियत क्या होती है। पूरा मजमा जमा था और हर आदमी दुआ करता है। वहाँ पर लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। वो जो मुल्किन थे वो इजरात को अजीब बातें करने लगे, कहने लगे तुम बड़ा इमाम बताता तुमको, उनको तो वक्त की बातों की तरफ इजाजत नहीं है, जो वक्त किया उसको पहुंचे भी नहीं। इमाम साहब पूरी ताखीर से वहाँ पहुंचे और ताखीर से वहाँ पहुंचने के बाद लोगों ने कहा, खासतौर से जो मुल्किन का सरदार था, आपको तो हम बड़ा ज़लील आदमी और जिम्मेदार आदमी समझते थे, कम से कम आपको वक्त की पाबंदी का ख्याल करना चाहिए था। इमाम साहब बोले मामला देखिए हम वक्त की पाबंदी के साथ घर पर चले थे, रास्ते में एक वाकया ऐसा हो गया जिसकी वजह से हम बेइख्तियार दाखिल हो गई और बड़ा हैरतअंगेज वाकया था जो आज तक नहीं हुआ। उसने कहा अच्छा बताइए क्या वाकया हुआ। इमाम साहब बोले जिस गाड़ी से ये जो भी अलावा रहा था वहाँ पर घोड़ा गाड़ी नहीं होगी कार्ड, इससे हम सफर कर रहे थे, तो रास्ते में चलते चलते क्या हुआ कि वो लकड़ियां अलहदा हो गई और अलहदा होने के बाद उनका दोबारा से पेड़ बन गया और जो हमारे साथ जो जानवर उसको घसीट के लेके जा रहा था उसकी हड्डी और गोश्त अलग हो गया, वो मिट्टी में मिल गया और हड्डी अलग अलग हो गई। तो आदमी कहने लगा हम तो वाकई आपको बड़ा हकीकतमंद आदमी समझते थे, हमें तो यकीन नहीं था, हम इस कदर बेवकूफ हो गए। इमाम साहब बोले क्यों क्या हुआ। कहने लगा जब कोई गाड़ी को पकड़ने वाला नहीं तो गाड़ी कैसे टूट गई और घोड़े को कोई ज़िबा करने वाला नहीं तो घोड़ा कैसे ज़िबा हो गया। हैरत की बात है। इमाम साहब बोले इससे ज़्यादा हैरत की बात है कि पूरी कायनात बन गई उसको कोई बनाने वाला ना हो। अब उसको समझ में आया कि क्या हो गया था, मुंतर लगी कफर, ये तो चिड़िया उड़ गई मेरे हाथ से, ये क्या हुआ। इमाम साहब ने कहा तुम्हें गाड़ी के टूटने का यकीन नहीं है और इस कायनात के बनने के लिए तुम कहते हो इसका कोई खालिक नहीं है, तो इससे बड़ी हैरतअंगेज बात तो हमने भी नहीं सुनी। हम तो तुम्हें बड़ा समझदार आदमी समझते थे, तुम तो बड़े बेवकूफ थे। रिया बात को चाहता पता नहीं होता है। यूनानी फलसफे को जब उनके पास वही नहीं थी तो उनको भी इस चीज में ठोकर लगी कि उन्होंने पहले तो पूरी कायनात के लिए निजाम सोचा कि भाई पूरी किसको आप बताएंगे कि कायनात बेवजह बन गई, कोई नहीं तस्लीम कर सकता, तो अकल को कोई जवाब चाहिए। तो उन्होंने कहा कायनात तो हमेशा से है, ये हमेशा ऐसे रहेगी, चलती रहेगी। आलू में भी ऐसे कुछ लोग थे मुश्किन में जो कहते थे कुछ होना बोला नहीं है, बस खाओ पियो और मर जाओ, हम पैदा होंगे मरेंगे फिर दोबारा पैदा होंगे फिर मरेंगे, इंतजाम ऐसे ही चलता रहेगा। जब ये बात को समझाई गई, अब इस बात को समझाने गई, लेकिन ये जो सिफात है अब उनका क्या बताया जाए। तो सिफात को उनको बड़ी ठोकर लगी, वही उनके पास भी नहीं, कोई नबी का इल्म उनके पास नहीं था, तो दुनिया के निजाम को इल्हाद से जोड़ने के लिए उन्होंने सिफात को मुजस्सम मानना शुरू कर दिया। एक कलमा है, कलमा जैसे हमारे रूप में भी माना गया, सरस्वती देवी मानी गई। हम कल हिंदुस्तान पे भी बोलेंगे, हिंदुस्तान इंशाअल्लाह और हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साहब हैं वो बात करेंगे, लेकिन यहाँ भी लोगों को सिफात पर ठोकने लगी। इन्होंने सिफात को असल समझा, जात को भुला दिया, क्योंकि जात का कदर काम करता है सिर्फ का सीधा तौहीद को पहुंच जाता है। झगड़ा ये है, इल्म कलाम की बड़ी गहरी बहस है। आज में कई घंटे लगे, कई किताबें हमने दोबारा से पढ़ी, आज पूरी मोबाइल में पढ़ी और शिमली में भी जाके पढ़ी। इल्म कलाम की बड़ी गहरी बहस है जो अच्छे लोगों को समझ में नहीं आती है। बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं, जात असल है, सिफात उसकी ताबे है। हालांकि हमारे सब्जेक्ट की बात नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एक चाय का आप उसमें पिलाइए, जात असल है, सिफात उसकी ताबे है। आप समझ रहे हैं बात को। उनको क्या धोखा लगा, जब नबियों को बीच में से हटाया, जब वही की तालीम को बीच में से हटाया, तो उन्होंने जात को असल समझ लिया, और जब जात को असल समझा तो नाउजुबिल्लाह वो ठोकरे लगती चली गई और फिर अकल वहां पहुंच के जाके खड़ी हुई जहां आज इंसानियत खड़ी हुई। अच्छा मुशरिकीन को ये बात मानना है, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनके यहाँ सैकड़ों देवी देवता थे। अगर 3 और बढ़ गए तो इस में क्या फर्क पड़ रहा है, आप समझ में आ रहा है। एक आदमी को अगर बड़ा लंबा चौड़ा आदमी हो, बड़ा खाना पीना वो खा सकता हो, और खाते खाते आप उसकी प्लेट से थोड़े और चावल और रख दीजिए तो उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और एक आदमी जो बेचारा खाते ना उसे आपका टिफिन पूरा करना भारी पड़ जाएगा। हमारे साथ कई लड़के पढ़ते थे बेचारे, हम कहाँ होंगे, वो लोगों के टिफिन चोरी कर लिया करते थे। भूख लगती थी बहुत, किसी को उनका काम नहीं होता था तो दूसरे के टिफिन में से कहीं से आधी रोटी, कहीं से
قصور کر دیا. یہ قصور ہے نا، ایک وضع شریع علی غیر محلی، انہوں نے چیز کو وہاں رکھا جہاں اس کا حق نہیں تھا. تو اللہ کی ذات اصل ہے، اور اللہ کے جتنے نام ہیں، صفات کے نام ہیں، وہ سارے کے سارے صرف اللہ کے نام ہیں، ان کے اندر کوئی حقیقتیں نہیں ہیں. جیسے آپ کی ہیں، آپ گفتگو کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ کلمہ آپ کے سامنے نظر آنے لگتا ہے کیا؟ یا آپ کے اندر جو صفت ہے، آپ کا تعلق ہونا، آپ کا مطالعہ کرنے والا ہونا، آپ کا سچ بولنے والا ہونا، آپ کا سمجھنے کی بات ماننے والا ہونا، اپنے والدین کا اطاعت گزار ہونا، یہ سب آپ کی صفات ہیں. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر یہ بھائی عبداللہ بیٹھے، یہ بھائی صرف عبداللہ ندوی ہے، اگر اطاعت گزار عبداللہ ہے تو ایک اور کاپی کی کھڑی کر دی جائے. آپ کو پتہ ہے اپنی بیوی کی بات ماننے والے عبداللہ، پھر کی ایک کاپی اور کھڑی کر دی جائے. اپنے اساتذہ کی بات ماننے والے تہجد گزار عبداللہ، تو ایک کاپی اور کھڑی کر دی جائے. کاپیاں نہیں بنتی ہیں، یہ ان کی صفات ہے جو کہ تابع ہیں. سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کے بات. ان کو کیا ٹھوکر لگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے اللہ کی صفت کلام سمجھا اور ان دونوں کو جوڑنے کے لیے بیچ کا واسطہ صفت محبت سمجھا. اور صفت محبت کی بات کہاں بھی جائے گی؟ جہاں ہم اوریجنل صفت میں بات کریں گے. یہ توحید کی اور تصدیق کی کلامی بحث ہے. اب اتنی جو بحثیں ہوئی، نبی کی تعلیم چھوڑ دی، نبی نے اللہ کی جو وحی ہوتی ہے وہ بڑے سمپل الفاظ میں ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی جس کے اندر اللہ کی ذات و صفات کی بات ہوگی، اس کے اندر کبھی کوئی ابہام نہیں ہوگا، اس کے اندر کبھی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہوگی، کوئی ہڈن راز نہیں ہوگا. وہ بالکل سمپل ہوگا جو آپ کے بدوؤں کی زندگی ایسے سمجھ میں آئے گا، دنیا کے ذہین ترین آدمی کو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل قال المسيح يا بني اسرائيل اني آگے بھول گئے. اللہ نے اس آیت میں نے کتنا صاف کہا کہ اگر مسیح خود ہو گئے تو مسیح کہتے کہ نہیں، یہ کفر ہے کہ ان کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا گیا. یہ ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی جو اللہ نے اپنی ذات و صفات کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. اب ان کو ٹھوکر کہاں لگی؟ اب اللہ کی ذات میں تو پہلے مسئلہ نہیں ہوا، لیکن بیٹے کی جو صفت ہے، اب جو سوال پیدا ہوئے کہ بیٹے کو مکمل خدا کیتھولک چرچ نے منوانے کی کوشش کری. اب ان کے جو فرقے کھڑے ہوئے انہوں نے جو بات کی کہ اگر وہ مکمل خدا تھے تو جو مسیح مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ کون تھا؟ اور اگر وہ مکمل خدا تھے تو جو جس کو یہودیوں نے ستایا وہ کون تھا؟ بائبل کے اندر ہمیں سینکڑوں واقعات ملتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کا نہیں تھا، آپ کو اتنی بڑی بھوک لگ رہی تھی تو آپ نے اپنے اس سے کہا، اپنے جو شاگرد تھے کہ جاؤ سامنے پیڑ ہے لے کے آؤ، اس کو کچھ ہے کھانے کا. تو وہ اس کے پاس ہے تو جا کے دیکھا کہ انجیر کا پیڑ کھا لو، لیکن اس کے اوپر پھل نہیں تھے. تو آپ کے شاگرد نے کہا کہ اس کو کوئی پھل نہیں ہے اور استاد یہ پھل کا موسم بھی نہیں ہے، چونکہ پھل کا موسم نہیں ہے تو اس کو کوئی انجیر نہیں ہے. آپ نے اس کو دعا دی کہ تم ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاؤ، پیڑ ٹوٹ گیا. تو اگر یہ ایک انسان کی صفت ہے تو خدا کی صفت ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سامنے والے پیڑ کے اوپر کیا ہے. اور آپ کی جو ساری انسانی صفات ہے کہ آپ کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، آپ روئے، آپ کو بھوک لگی، آپ کو شیطان نے آزمایا، کسی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے، خدا کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور ان کے غلط تصور کے مطابق یہودی آپ کا قابض ہو گئے، یا خدا کا کوئی قابض ہو سکتا ہے؟ ایک ادنا سے طاقتور آدمی کے اوپر کوئی قابض نہیں ہو سکتا، پہلوان کے اوپر کوئی قابض نہیں ہو سکتا. ہدایت خدا نعوذ باللہ. لیکن جب وحی کا نام ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو شیطان کے ساتھ انسان لگتا ہے کہ ساری باتیں اس کو صحیح لگتی ہیں. تو ان یہاں حضرت عیسیٰ کی جو حیثیت ہے اس کے اوپر تقریباً اتنی بحثیں ہوئی اور اس کے اوپر اتنی کتابیں وجود میں آ گئی کہ ایک نیا علم کلام کیا کرسٹولوجی کے نام سے وجود میں آ گیا، جس کے اوپر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی اور آج تک لکھی جا رہی ہیں. اور آج تک ہر 2-3-4 سال کے بعد دنیا میں نیا مفکر پیدا ہوتا ہے، متفکر پیدا ہوتا ہے اور وہ نیا دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں وہ فرشتے تھے، شکل میں ہمیں انسان نظر آتے تھے. کوئی کہتا ہے کہ ان کی 2 حیثیتیں تھیں، کوئی کہتا ہے 1 حیثیت تھی، لیکن آج تک ان کا مسئلہ سیٹل نہیں ہوا. اسی لیے اور تیسرا مسئلہ جو ہے روح القدس والا، ان کا بھی اس کا بھی مسئلہ آج تک ایسے ہی ہے. اس لیے آنکھوں کے سامنے کھڑے ہوتے تو کہہ دیا کہ ہم روح القدس کو نہیں مانتے، اس کی جگہ ہم حضرت مریم کو مقدس مانتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے سے ہمارا خدا دنیا کے اندر آئے تھے. لیکن کیتھولک چرچ کے لیے تو یہ ملحد تھے، بدعتی تھے. کیتھولک چرچ نے انہیں بھی ان کی پڑھائی کری، ان کی کتابیں چھپواتی اور ان کو بھی دنیا سے ناپید قرار دیا. یہ بات ہو گئی صرف تصویر کی. ان کی کلامی بحث آپ کے سامنے آ گئی. تصویر سے کس سے کس کو مراد دیتے ہیں وہ سامنے آ گیا. کل ہم نے آپ کو ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے ان کا کریڈ آف ایتھنیسیئنس کو تھوڑا سا پڑھ کے سنایا تھا.
شرک کا عقیدہ اس لیے باطل ہے، انشاءاللہ رات کو پڑھانے کے لیے ہم اگلی بار میں اس کا پورا رد پڑھائیں گے آپ کو. ہم اس لیے بھی اس چیز کی کتنی سی بات ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا خود آج تک کروسیفکشن کی حقیقتوں پر وہ خود نہیں سمجھ سکے کہ کیسے کیا ہو، اس موقع پر کیا ہوا. وہ دن جمعے کا تھا، یہودیوں کو جلدی سے جلدی اپنے گھروں کو لوٹنا تھا سورج چھپنے سے پہلے پہلے. ادھر جو رومی لوگ تھے ان کو آپس میں مطلب نہیں تھا، اور ان کے لیے سارے یہودی ایک جیسے تھے. ایسے بہت سارے قرائن یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ وہاں پر ہوا وہ کسی نے نہیں دیکھا، صرف ہمارے پاس اس کے واقعات ہی واقعات ہیں. نہ جانے اصلیت میں وہاں کیا ہوا اور قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے. اور حالانکہ انشاءاللہ جب آپ بائبل تھوڑا سا پڑھ کے آئیں گے اور کتاب پڑھ کے آئیں گے تو ہم آپ کو ان کی آیات سے یہ چیز ثابت کریں گے کہ واقعہ بعد میں انہوں نے اس کے اندر داخل کیا. جب اور بھی دماغ کو ساری مدافع گئی تو یہ داخل کیا. اس لیے عیسائیت کے شروع میں تقریباً 60-70 سال تک بلکہ 100 سال تک ایسے فرقے موجود رہے جو مانتے تھے کہ آپ کو کراس پر نہیں چڑھایا گیا، یا تو یہودا اسکرویبی کو چڑھایا گیا، وہ یہودا جس نے آپ کے ساتھ غداری کی تھی، یا اس شمون کو چڑھایا گیا جو شام کو صرف اپنے گھر جا رہا تھا، اس نے دیکھا بھیڑ لگی ہے وہ بھی دیکھنے آ گیا. ہوتا ہے کبھی کبھی بھیڑ میں جا کے تو دیکھتے کیا ہو رہا پتہ چلا لڑائی ہو رہی تھی، بچانے گیا بھیڑے گئے بولے کیوں آئے. تو ایسے اس کے ساتھ ہوا بیچارے کے ساتھ، شمون کے ساتھ. یہ وہاں تھا شمون قرینی نام تھا اس کا، سیموئیل دا قرینیس. یہ وہاں پہ نکل کے جا رہا تھا، لمبا چوڑا آدمی تھا. تو انہوں نے پکڑ کے ایک کے اوپر کراس کر دی. اس فرقے کا عقیدہ تھا اس کو کراس پہ چڑھایا گیا اور عیسیٰ کو کراس پہ نہیں چڑھایا گیا. یہ کروسیفکشن کا عقیدہ ہو گیا. سب سے آخری عقیدے کی اگر ہم بات کریں تو ان کا وہ نظریہ کہ نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کی وجہ سے ہم سے، حضرت آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر وہ گناہ پیدائشی طور پر موجود ہے جو انہوں نے کیا. اس کے نتیجے میں ہم سارے گناہ گار ہیں، اور جب سارے گناہ گار ہیں سارے گناہ گاروں کے لیے نجات کا کیا ذریعہ ہو. اب پوری دنیا گناہ گار ہے تو قرآن سے تو نجات نہیں ہو سکتی. بھائی تھوڑا سا گناہ کر لیا، لیکن جب سارے گناہ گار ہو. اب ایک لڑکا ہمارے وقت میں کیا تھا، ایک لڑکا حاصل ہو گیا تھا، آپ بھی بول دیتے ہیں کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے. تو لڑکا حاصل ہو گیا تھا، اس نے 2 حاضری کو بول دی، دوسروں کی تو بول دی. اب اپنی کو پکڑے گئے بولتے ہیں. اب جب وہ پکڑے گئے تو انہوں نے، ہمارے جو استاد اس وقت تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ پورا درجہ گنہگار ہے، کیونکہ اجتماعی گناہ میں سب شامل تھے. اور یہ آج سے نہیں بول رہے ہیں، کئی بار سے بول رہے ہیں. اس سے پورا کلاس جائے باہر اور سب کی غلط لگے گی جتنے یہاں پر حاصل ہوتے ہیں. اب اتنی بڑی اجتماعی سزا تھی، بہت بڑی تھی. سامنے بلایا اور بڑا بنانا ہوا، ہمارا رجسٹر بھی سب ہو گیا کیا کیا ہوا ہے. تو ان کے حساب سے پوری کائنات گنہگار ہے، ہر پیدا ہوا بچہ گنہگار ہے. کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا، کل موجود یولد فأبواه يهودان او یہ حدیث ایسے نہیں ہے فأبواه يهودان او ينصرانه. یہاں پر عقیدہ ان کا یہ ہے کہ ہر وہ بچہ جو پیدا ہوا اسے بپتسمہ نہیں لیا گیا. بپتسمہ لینے کے کیا سینکڑوں طریقے ہیں. کیتھولک چرچ میں عام طور سے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. کسی چرچ میں پانی میں باقاعدہ ڈبو کے دیتے ہیں، یعنی سینے تک آدمی ڈبکی مارتا ہے، کھڑا ہوتا ہے. تو بہت زیادہ ان کے یہاں آرتھوڈاکس ٹائپ کے لوگ ہیں. کچھ کے یہاں کیا ہے، پانی میں ڈبویا نہیں جاتا، صرف پانی میں کیا کرتے ہیں کہ پانی لے کے آدمی کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، اتنا پانی جس سے اس کا سر بھیگ جائے بس. کچھ کے یہاں صرف پانی چھڑکا جاتا ہے، یعنی اتنا پانی آدمی ہاتھ میں لیتا ہے، جیسے ہاتھ میں پانی لیا اور پڑھ کے اس کے اوپر کچھ پڑھ کے لیٹن کی دعائیں ہیں وہ پڑھ کے اس کے اوپر ڈال دیا اور اس کا بپتسمہ ہو گیا. وہ ہے کہ بچہ کرسچن ہو گیا. اس سے پہلے اس کو عیسائی نہیں مانا جاتا. اس لیے سینٹ آگسٹائن نے کہا کہ جو بچے بپتسمہ سے پہلے مر گئے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، چاہے وہ 2 سال 3 سال کے معمولی بچے ہوں، چاہے اس سے پہلے مر گئے ہوں. اگر بپتسمہ ان کو نہیں دیا جا سکا تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی ہمیشہ کے جہنم میں جائیں گے. یہ ان کا غلو ہے. اسی لیے اب جو کوئی آدمی عیسائی لگتا ہے تو اس کو چرچ میں ہاؤس چھوٹی سی بنا کے رکھتے ہیں، اس میں داخل کرتے ہیں، وہ بیٹھتا ہے، 2 منٹ کے لیے نکل آتا ہے، پانی اس کو پکڑ ڈالتے ہیں. اب چیپٹر ڈھونڈنے نہ جائیے گا، آپ کے ہر چیز میں نہیں ہوتا. کبھی آپ جو جا کے دیکھیں وہ کہاں ہے، بہت مولانا بتا رہے تھے. تو ہر طرح ڈھونڈیے گا آپ کو مسجد بھی بہت نہیں ہوگی. تو وہ جو اب یہ عقیدہ ہے کہ بپتسمہ نہیں دیا جائے گا، تو جب تک وہ آدمی عیسائی نہیں بنے گا، جب تک وہ آدمی کو لگا رہے گا، تو اس کے نتیجے میں یہ عقیدہ لے کر آئے کہ اس کے بعد بپتسمہ لینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا پڑے گا. اور اس سے جو فری ول ہے، اس کو اسلام نے کہا کہ ہر آدمی معصوم ہے، اس کے خاندان
उसके बाद उनके जितने भी फिल्म दुनिया में मौजूद हैं सब के सब बाइबल को खुदा की किताब या वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं, इख्तिलाफ के बावजूद। इस पर सब मुत्तफिक हैं। और एक चीज पर सारे ईसाई मुत्तफिक हैं, वो है पूरी दुनिया को ईसाई बनाना, और उसके लिए कोई भी जरिया भी इस्तेमाल करना पड़े उससे गुरेज नहीं करते। इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी कि इस बदर ज़मीन में, इस मुल्क में, इस ज़मीन में, इस सूबे में उन्होंने क्या क्या किया लोगों को दुनिया में ईसाई बनाने के लिए। आप और हमारा ख्याल आप में नहीं गुजरती वो चीजें जो इन्होंने की हैं। यानी दुनिया में सिर्फ एक चीज पर ही मुत्तफिक है पूरी दुनिया के ईसाई, जो पूरी दुनिया को किसी भी तरह से ईसाई बनाया जाए। उसके लिए वो एक इंग्लिश फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, टू कैच द फिश या टू सेव द सोल फॉर द क्राइस्ट। हज़रत ईसा के लिए किस तरह से उन्हें बचाया जाए, ये इनके वो है, यानी इनकी फ्रेज ये इस्तेमाल करते हैं तब्लीगी उसमें, अपने तब्लीगी लिटरेचर में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इंशाल्लाह हम आपको इसके दूसरे हिस्से में कुछ किताबों का नाम बताएंगे, वो आप पढ़ के आएंगे, और उनके बाद इंशाल्लाह हम 1-2 महीने बाद अल्लाह ने मौका दिया हम फिर आएंगे, तो फिर उस वक्त आपको इन सारी चीज़ों का पढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा तज़किरा कर दें इस मुल्क के अंदर, खासतौर से हमारे मुल्क और सब कॉन्टिनेंट में जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने क्या किया, उसका हमारे उलमा ने मुकाबला कैसे किया। हमसे लड़के बार-बार कह रहे हैं वहाँ से कोई किताब बताइए, कोई किताब बताइए। अरे भाई शुरुआत आपको काम के बाद हमें बता दें। देखिए सबसे पहले अगर आप तारीख को पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे अव्वली मर्जा उसके लिए कुरान करीम है। हमने उसे पूछा था कितने लोग हाफिज हैं, तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाए थे। अव्वली मर्जा आप चाहे कि किस क्लास में हो, कुरान करीम सबसे पहला मर्जा है, और खासतौर से कुरान करीम की सूरह आले इमरान, सूरह माइदा, सूरह मरियम और सूरह अंबिया। किसी हद तक इसमें ज्यादातर चीजें मिल जाती है, वैसे कुरान करीम में और बहुत सारी जगह भी है, लेकिन इसमें ज्यादातर चीजें मिल जाती हैं आपको। इसको सबसे अव्वल आप तफसीर मालूमी से पढ़ें। सबसे पहला ये बिल्कुल आम तलबा के लिए, आयत के लिए, बच्चों के लिए है, आपके लिए तो है नहीं, मैं अच्छा भी लगा आपको कहने आप तफसीर मालूमी पढ़ें। आपका लेवल नहीं है तफसीर मालूमी पढ़ने का, तो छोटे से बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आप इब्तिदा करें तो चलिए आप तफसीर मालूमी से इब्तिदा करिए, या और भी कोई तफसीर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं अपने असातिज़ा के मशवरे से। लेकिन तफसीर मालूमी में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अंग्रेजी वाली देख लें तो बहुत ही अच्छा है, उर्दू वाली में भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तफसीर हक़ानी का मुक़दमा भी बहुत अच्छा है, अगर आप पढ़ सकते हो, उर्दू खली उर्दू में है तफसीर हक़ानी का मुक़दमा। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ जितनी अहादीस यहाँ में मौजूद है, आपके नुज़ूल के मुताल्लिक़, आपके हयात ख़ाने से मुताल्लिक़ सियासत में, वो सब आप देखें। बुखारी पढ़ने वाले कितने लोग हैं आपको? हाथ उठाइए। बहुत सारे लोग बुखारी पढ़ेंगे, हम तो सोच रहे थे नहीं पढ़ेंगे काफ़ी लोग। और ये बाकी किसी सिहानी किसी भी किताब में देखें, सियासत में जहाँ तक अरबी किताबों की बात आती है, तो अरबी किताबों में एक शफ़क़ात किताब है, इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह की अल-जवाब अस-सहीह लिमन बद्दल बिल-मसीह। इस किताब से आला किताब आज तक तकदीर ईसाइयत को हमने नहीं देखी। अल-जवाब अस-सहीह लिमन बद्दल बिल-मसीह इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, 4 जुल्दों में शायद हुई है, और आपको शायद दूसरी या तीसरी बार में समझ में आएगी। हम पहले बता रहे हैं, पहली बार में किसी को समझ में नहीं आती, क्योंकि इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ना और समझना खुद इस बात की दलील है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको कुछ इल्म दे दिया है। अल-जवाब अस-सहीह लिमन बद्दल बिल-मसीह, ये अरबी की किताब है, आप इसे जरूर फायदा उठाइए। उर्दू की और अंग्रेजी किताबें आप बताएंगे आपको, पहले आप आगे की उर्दू किताबें जिससे हमने बहुत फायदा उठाया हम वो बता रहे हैं आपको। अल-जवाब अस-सहीह लिमन बद्दल बिल-मसीह, बैठ जाइए आप, ऐसे क्यों कोई परेशानी है, आराम से बैठेंगे।
यहाँ भी हमारे पास एक है मुहाज़रात नस्रानिया, बहुत अच्छी किताब है, मुहाज़रात शेख मुज़ाहरा की मुहाज़रात नस्रानिया। मुसन्निफ फिर से बता। हालांकि उन्होंने मिस्र में लिखी है, इनका पुस्तक देख लीजिए, मैंने लिख लिया। तो हालांकि उन्होंने किताब मिस्र में लिखी है, वो मिस्री आलिम थे, उन्होंने अपने मिस्री माहौल को सामने रखा है, मुसन्निफ कौन है? लेकिन आपको इसमें काफी चीजें मिल जाएंगी। मुहाज़रात नस्रानिया तीसरी किताब है, अरबी में बहुत किताबें हैं, इतनी किताबें हमारे पास में पूरी पेन ड्राइव थी, शायद होगी तकरीबन 2000 किताबें हमने उसमें डाउनलोड कर ली थी अरबी की, जो ईसाइयत पर थी। अरबों ने बहुत काम किया है अरबों ने, और उसमें अरब ईसाइयों की किताबें भी थी, जैसे अहमद हिजाज़ी सल्लल्लाहु की किताबें बहुत अच्छी थी, लेकिन आखिर आप अभी को देखिए। और एक तीसरी किताब है जो हमें बहुत प्यारा है, हमें जिससे हुआ वो है हिदायतुल हयारा फी वजूबतिल यहूदी व नसारा, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि। हिदायतुल हयारा, हिदायतुल हयारा क्या मतलब हुआ? फी वजूबतिल यहूदी व नसारा, क्या हुआ आपको? आपने लिखा क्या हो गया? हिदायतुल हयारा फी वजूबतिल यहूदी व नसारा, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि की किताब है, बहुत आलिम किताब है। अगर तारीख पे इसके बाद तारीख देखना चाहें तो अल-मिलल व निहाल देखिए, शायस्तानी की। अगर जॉब पढ़ना जितनी जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी किताब है, आपको रेफरेंस के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस किताब के लिए तीन किताबें आपके लिए बहुत अच्छी हैं अरबी में, उर्दू की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम तीन शख्सियतों के नाम आपको लिखवाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मौलाना रहमतुल्लाह अलैहि कराची, मौलाना रहमतुल्लाह कराची कराना नाम सुना होगा, मुजफ्फरनगर में थोड़ा सा कस्बा है कराना, और ये वही रहमतुल्लाह साहब है जिन्होंने मक्का में सुन्नतिया कायम किया। ठीक है, मक्का में नाम सुना मदरसा सुन्नतिया का, मौलाना रहमतुल्लाह अलैहि कराची, अलग अलग आयत से निकल गया नाम, मतलब मोहम्मद रहमतुल्लाह। दूसरे नंबर पे हजरत मौलाना कासिम साहब मौलाना सैयद रहमतुल्लाह अलैहि, इनके बात जानती हूँ, नाम के बारे में ये हमने तीन शख्सियतें मुंतखब की हैं शास्त्र के मशवरे से। ऐसे हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ईसाइयत पे काम किया, बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन खास तौर से ये तीन लोग। तीसरी शख्सियत है मौलाना मोहम्मद अली मुंदेरी रहमतुल्लाह अलैहि, अच्छी बात है। लिख लिया आपने जी? ये तीन शख्सियतें हमारे अपने आप को बता दी। एक कोई खास हिसाब नहीं है, हमने आपसे डिजाइन किया एक दिन पहले, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। सिर्फ छोटा सा तारुफनामा आपके लिए है कि अगर आपको शौक होगा तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब उर्दू में जिन किताबों से हमने फायदा उठाया है, और हम आपसे भी कहेंगे सबसे पहले आप अल्लाह के लिए ईसाइयत क्या है। दरअसल ये मौलाना रहमतुल्लाह अलैहि की किताब है इज़हारुल हक़, ईसाइयत में मैग्नस ऑपम है वो किताब, उससे बड़ा शाहकार अब तक इस बड़े समय में नहीं आया। मतलब उर्दू पहले अरबी में भी लिखी थी मौलाना ने, उसका उर्दू तर्जुमा हो गया बाइबल कुरान के नाम से, तो उसी का मुकदमा है ईसाइयत क्या है। उस्मानी साहब ने उसको फिर बाद में अलग से भी शायद किया। ये इब्तिदाई किताब है, आप सब पढ़ सकते हैं, मैं जिससे खरीदती है, बहुत छोटी सी किताब है, कल हमारे पास लड़कों ने देखी थी। ईसाइयत क्या है, बहुत आसान किताब है। ईसाइयत का इब्तिदाई तारुफ आपको मिल जाएगा। हम इसे ईसाई मतलब ईसाइयत के मौजूद से जैसे हम कुरान बोलते हैं तफहीम के लिए। ठीक है, ईसाइयत क्या है। इसके बाद दूसरी किताब, इसका जो असल किताब है वो सबसे आखिर में बात करेंगे। इसके बाद जो दूसरी किताब है वो है इस्लाम और नस्रानियत, मौलाना इदरीस साहब कांदवी की इस्लाम और नस्रानियत। बड़ी अच्छी किताब है, और इसमें इन्होंने उन तमाम
قادیانی استشہاد کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اسلام اور نصرانیت مولانا ادریس صاحب قانگری رحمۃ اللہ علیہ. نہیں عیسائیت نہیں نصرانیت ہے. اس کے بعد ایک کتاب اور ہے مولانا عبداللطیف مسعود کی تحریف بائبل پر زبان بائبل. بہت اعلیٰ کتاب ہے. بائبل کا اتنا زبردست مشاہدہ ٹیکسٹ انہوں نے مرتب کیا ہے جس میں بائبل کے اندر تحریفات ہوئی ہیں. جی تحریف بائبل پر زبان بائبل مولانا عبداللطیف مسعود صاحب کی. لیکن بغیر مشکل کے آپ نے پڑھیں گے. آپ نے کسی کے اشراف میں آپ کی کتابیں پڑھیں گے. ایسا نہیں کہ آپ کو پڑھنا شروع کر دیں. آپ نے جس استاد سے آپ کا تعلق ہو یا کم سے کم کوئی سینئر طالب علم ہو جس کو آپ سمجھتے ہو کہ ماشاء اللہ زمین ہے, اس کے ساتھ اس کے بلکہ بہتر ہے کہ اس استاد کے سامنے رکھ کے کتاب پڑھیں. اپنے آپ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد ایک کتاب اور ہے عیسائیت تجزیہ اور مطالعہ ساجد میر صاحب کی. یہ ہمارے یہاں مجھے اپنی ملتی پہلے سے جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں سے ہے عیسائیت PDF ڈاؤن لوڈ کر کے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. یہاں مکتبے والوں نے شاید پرنٹ بھی کر دی ہے باہر مکتبے میں. عیسائیت تجزیہ اور مطالعہ ساجد میر صاحب کی. جی اگر آپ کتاب بتانا ہے آپ باتیں کرا کے لیے تو دیکھیے تو آپ کی دنیا میں مست ہے. دیکھیے عیسائیت تجزیہ اور مطالعہ ساجد میر صاحب کے بڑے عالم تھے اور ساجد امین بھائی. اس کے بعد ایک کتاب ہے عیسائیت کا پس منظر. اردو زبان اس کی سب ہے لیکن بڑی اچھی کتاب ہے. مولانا سرفراز خان صاحب کی ہے. سرفراز خان صاحب کی عیسائیت کا پس منظر. سرفراز خان صاحب مولانا سرفراز خان صاحب مطلب کا نام ہوتا ہے صفدر. عیسائیت کا پس منظر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی یہودیت. اصل میں کتاب نہیں ہے دراصل جو انہوں نے اپنی تفسیر ہے تفسیر القرآن اس میں جو عیسائیت اور یہودیت پہ جن آیات کے تفسیر کیے اس کو کس نے بعد میں الگ سے شائع کیا تھا. یہودیت اور نصرانیت قرآن کے یہودیت اور نصرانیت قرآن کی روشنی میں قرآن کے آئینے میں. اس کے بعد پھر کسی نے نصرانیت والے پارٹ کو الگ سے شائع کیا. ہمارے پاس جو ڈاؤن لوڈ ہوا ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے. پرانا والا جو تھا اس میں یہودیت اور نصرانیت ساتھ ساتھ میں تھی. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ وہ الگ شائع ہوا, ہم نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیا. ہمارا بھی ہے اب آیا کہ ہمارے پاس نصرانیت قرآن کی روشنی میں نصرانیت قرآن کی روشنی میں. عیسائیت کیا آپ بھی لکھتے ہیں کیا؟ لکھ لیجیے, کام میں آئے گا, بہت کام میں آئے گا زندگی میں. اور باقی تفسیر ماضی اپنے آپ کو بتا دی. ہمیں ابھی کل ایک صاحب نے بتایا کہ تفسیر ماضی میں جو عیسائیت کے جتنے تفسیر مولانا نے کیے ہیں آیات پہ اس کو بھی کسی نے الگ سے شائع کیا لیکن ابھی تک وہ ہم نے لکھی نہیں. اگر آپ میں سے کسی کو مل جائے اپنے ساتھی سے پوچھیے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. انگلش میں تو ان کی ایک کتاب ہے جیسس اینڈ میری کے نام سے, یعنی جن آیات میں حضرت عیسیٰ حضرت مریم کا تذکرہ ہے وہ اپنے سے الگ سے شائع ہو گئی. یہودیت و نصرانیت جیسس اینڈ میری. لیکن آپ تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے صرف آپ کی علم کتابوں کا جاننا بھی اپنے آپ میں ایک علم ہے. آپ کی صلاحیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے آپ کتنی کتابوں کو جانتے ہیں. جی آپ عالم ہیں تو آپ کتابوں کو جانیے, موبائل کو نہ جانیے. اور موبائل کو جاننے کے لیے اگر آپ کو شوق ہے تو موبائل کی دکان کھول لیجیے, کھول لیجیے گا, اس کو پہلے لیکن کتابوں کو پہلے جانیے آپ. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی آپ کے سامنے. انگریزی کا ایک طالب علم نے کل ہم سے کہا تھا ہمیں انگریزی میں کتابیں بتائیے. انگریزی میں بہت کتابیں ہیں, اتنی کتابیں ہیں کہ آپ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے. اور زیادہ تر کتابیں اچھی بھی ہیں, خراب بھی ہیں, اردو بھی ہیں. تو انگریزی ہم اس لیے بھی چھوڑ رہے ہیں کہ پہلے آپ کتابوں کا مطالعہ کر لیں پھر ہم آپ کو انگریزی بتائیں گے. جیسے احمد بیدار صاحب کی کتابیں بڑی اچھی ہیں انگریزی میں, ان کے یوٹیوب پہ لیکچرز وغیرہ موجود ہیں. لیکن ان سے چونکہ وہ عالم نہیں تھے ان سے
कई जगह कुछ कमियां हुई हैं मेरे साथ, हालांकि हमने उनसे बड़ा फायदा उठाया, हमने बहुत उनकी किताबें पढ़ी और सबसे इब्तदाई हमने ईसाइयत जब पढ़ने की शुरू की तो अहमद साहब को हमने पढ़ा, उनकी चॉइस आज तक हमारे पास है। लेकिन चूंकि वो आलिम नहीं थे, और जब आदमी आलिम नहीं होता तो देखिए उससे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। तो जिस दिन आपकी सलाहियत मौजूद हो जाए कि आप फर्क महसूस कर सकें कि इससे गलती काम हुई, जब पढ़ लीजिएगा। ये तो हमने सिर्फ तारुफ के लिए आपको हम बताया। इसके अलावा मौलिस बुखारी की किताब है कुरान बाइबल एंड साइंस, उसका अरबी तर्जुमा भी है। ये सारी मिल साहब की किताब को भी अरबी तर्जुमा हो गया है, आज देखा हमने, पहले मैंने भी मिला था, इसका अरबी तर्जुमा भी हो गया। आप अगर अरबी तर्जुमा पढ़ें तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर मौलिस बुखारी एक फ्रेंच नो मुस्लिम थे, डॉक्टर मौलिस बुखारी, उनकी कुरान बाइबल एंड साइंस जी उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, अरबी में भी है, फ्रेंच में भी है। हमारे पास चारों भाषा है इसमें, बहुत आला किताब है। इन्होंने बहुत सारी चीजों को उसके अंदर जमा कर दिया है। अब हम आएंगे धर्म पर। इस मौजू की सबसे आला तरीन किताब, इस मौजू में ईसाइयत पे जितना काम वक्त हुआ है मदरसा से बाहर, अहमद रजा सब खुद कहते थे कि मुझको अहमद रजा बनाने वाली ये किताब है जिसका नाम इज़हारुल हक़ है। ये इज़हारुल हक़ उर्दू में ना पढ़िए, बिल्कुल ना पढ़िए उर्दू में, हालांकि उर्दू में भी है, लेकिन उर्दू में पढ़ना आपकी शान के खिलाफ है। क्यों चाहे ठंडा करके पीते हैं आपको, मुझे समझ में नहीं आता। चाहे गरम गरम पीजिए, अल्लाह ने आपकी सिखाई है तो अरबी में पढ़िए, ठीक है। बाद में समझ में आएगी, आप नजर में बैठ के अरबी में नहीं पढ़ेंगे तो चाइना में जाके अरबी में पढ़ेंगे, यहाँ बैठ के पढ़िए अरबी में। इज़हारुल हक़ अरबी में पढ़िए, इसकी तलखीस भी है, इसके इख्तिसार भी है, इसकी तफसील भी है। अब हम आपको बताएंगे इज़हारुल हक़ क्या चीज है। इस बड़े समीर में जब अंग्रेजों का तसल्लुत हुआ, बड़े समीर की जब हम बात कर रहे हैं तो आसपास के सारे लोग इसके अंदर शामिल हैं। आप जानते हैं ईसाइयत की मुसलमानों के साथ तारीख बहुत लगती है, सलीबी जंगों की तारीख है, उनके मामलात हैं, उन सबको छोड़कर एक खास मौजू पे फोकस करेंगे। वो खास मौजू क्या है कि जब मुगलों की सल्तनत यहाँ से खत्म हुई तो 1813 या 14 में अंग्रेजों ने निजाम बनाया कि इतना बड़ा मुल्क है और इस मुल्क के अंदर अब हमें ईसाइयत को फैलाना है। पहले तो उन्होंने काम खुद करने की कोशिश करी, क्योंकि उससे 1857 से पहले ये मुल्क जो था अंग्रेज हुकूमत के पास नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। याद रखें, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। तो उन्होंने ये निजाम बनाया कि इस मुल्क के रहने वालों पर अगर हमें हुकूमत करनी है तो ये हुकूमत जब हमेशा तक जब कायम रह सकती है कि ये लोग कम से कम हमारे मजहब पर आ जाए, या कम से कम हमारे मजहब से इनके अंदर नफरत भरी है, वो मुसलमानों में मजहब से हमारे अंदर नफरत निकल जाए। तो फौरन ऐसे पुलिस कायम किए गए, जैसे कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक पुलिस उन्होंने बनाया और छोटे छोटे छापाखाने वो यहाँ पर लेकर आए और उन्होंने धीरे धीरे खामोशी के साथ ईसाइयत का लिटरेचर जो था उन्होंने प्रोड्यूस करना है, लिटरेचर छापना शुरू कर दिया। अभी तक तो लिटरेचर वो सिर्फ छाप रहे थे, अभी किसी पर एतराज नहीं था, तो जाहिर उन्होंने ये किया कि हम हिंदुस्तानी ज़बान की लुग़ात तैयार करना चाहते हैं, जो यहाँ पे हिंदुस्तान में जितनी ज़बानें बोली जाती हैं उनके कायदे, उनके हुरूफ, उनकी ग्रामर, उनकी लुग़ात, उनके लेक्चर्स तैयार करना चाहते हैं। और यकीनन उन्होंने बहुत काम इस सिलसिले में किया है। विलियम कॉलेज खोला कलकत्ता में, उसमें उर्दू की लुग़ात उन्होंने मुनज़्ज़म करी, न जाने क्या क्या काम किए। दिल्ली में सर हेनरी फोर्ड कॉलेज खोला, उसमें उन्होंने बहुत काम किए। आदम हेनरी उन्होंने और कॉलेज खोला। ये सब काम तो जाहिर देखते अंदर खाना उनका ये निजाम था, क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की है बार बार अंग्रेजी और वहाँ मुतालबा करेंगे अपने मुल्क में कि हमें पैसे दिए जाए, हमें इजाजत दी जाए कि पार्टी इस मुल्क में जाकर काम करें। धीरे धीरे अंग्रेज की जो वहाँ पर
ये हमारी आदत नहीं होनी चाहिए। वो हर काम का कुछ वक्त के बाद तजजिया करते हैं कि भाई हमने ये जो काम किया है, इसमें जो पैसा खर्च किया है, इसमें जो हमने मेहनत लगाई, इसके क्या नतीजे बरामद हुए, और अगर उसके अंदर नाकामी होती है तो उनके यहाँ जिम्मेदारी लेने के लिए लोग होते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, उनको हटाया जाता है, नए लोगों को लाया जाता है। जब नतीजे उनके सामने रखे गए, कितने 5 साल 10 साल मेहनत करी, कितने लोग ईसाई बने, तो उनके सामने 3 बातें आई। 3 बातें ये थी कि इस मुल्क के अंदर जब तक यहाँ के रहने वालों में आपस में झगड़ा हम नहीं कराएंगे, जब तक हमारा काम नहीं बनेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये था कि इस मुल्क में मुसलमान और हिंदुओं की जो चीज आते हैं वो ईसाइयों की तरफ बिल्कुल राग़िब नहीं हो रही। हमने बहुत कोशिश कर ली, वो बिल्कुल नहीं आ रहे और वही सबसे ज्यादा मुखालिफत कर रहे हैं। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो हिंदुओं में जो बेचारे निचले लोग हैं वो बेचारे बहुत आसानी से आने को तैयार हैं, थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से उसके लिए। और वजह यह है कि मुसलमान जो है सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो मुसलमान है, बहुत जल्दी है, और उनके पास उनके उलमा है, जरा सी बात होती है लड़ने मरने को तैयार होते हैं, मजहब दुनिया नहीं तब्दील किया जा सकता। ये सारी बातें इनके सामने आ गई, तो इन्होंने कहा ठीक है अब इसके खिलाफ काम करना शुरू करो। तो उन्होंने समाज पर काम करना शुरू करा, ऐसी तारीख की किताब लिखना शुरू करी कि जिससे मुसलमानों का जहन खराब हो जाए। अल्लामा शफी रहमतुल्लाह अलैह को खड़ा करा। अल्लामा शफी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी ऐसी चीजों के जवाब दिए। उन्होंने औरंगजेब लिखी, अल-मामून लिखी, जिज़िया लिखी और बहुत सारी चीजें लिखी। तो आप दारुल सजीवीन में जब पढ़ें तो आप पढ़ लेंगे, तो उसका फायदा ये होगा कि मुसलमान थोड़ा सा उनका जहन बच गया। फिर इन्होंने यहाँ पर कुछ बदबख्त ऐसे लोग मिल गए जो मुर्तद हुए, मुसलमानों में से भी और ईसाइयों में से भी। उसको ये लोग काला पादरी बोलते थे, काला पादरी। क्या होता था, मकामी होता था और उसके साथ एक अंग्रेज पादरी होता था। फिर इन्होंने ऐसे लोगों को तलाश करा, तो यूरोप में इन्होंने दावतनामे भेजे कि जिन्हें मुसलमानों की ज़बानें आती हैं, तहजीब आती है, वो आ जाए। ये उर्दू भी आए, फारसी आए, अरबी आए, तो यहाँ पर आ जाए। तो बड़े बड़े पादरी ऐसे इकट्ठे हो गए जिन्हें अरबी बहुत अच्छी आती थी, तफसीर देख सकते थे, हदीस देख सकते थे, बाकायदा उलमा थे, वो यहाँ पर आके इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने बहुत सारे मिशन बनाए और फिर उन्होंने ये काम किया कि इस्लाम के खिलाफ एतराज़ात शुरू किए जाएं। और फिर वो जो सीआईडी में लगा के जो काला पादरी होता था, वो सीआईडी में भी होता था, वो ये देखता था जवाब देने की कोशिश कौन कर रहा है। जो जवाब देने की कोशिश करे उसके ज्यादा जब्त कर लो, उसे बाजार करार दे दो और उसके ऊपर जुर्माना लगा के उसे बंद कर दो। ये वाकया चलते रहे। फिर यहाँ पे पादरी आया जिसका नाम फिल्टर था। ये जर्मन नस्ल का पादरी था और बड़ा दिवाली था। तकरीबन 9 या 11 ज़बानें इसको ऐसे आती थी जैसे मानो आप उर्दू में बात कर रहे हैं। उसमें उर्दू भी थी, उसमें अरबी भी थी, उसमें फ्रेंच तो पंजाबी था, जर्मन था, अंग्रेजी भी जानता था, टर्किश जानता था और भी मुख्तलिफ ज़बानें जानता था, 1-7 ज़बानें जानता था। ये यहाँ आया और आने के बाद इसने उर्दू में, फारसी में बड़ी खतरनाक किताबें इस्लाम पे हमले किए, आयशा की ज़ात पे हमले, कुरान की तदवीर हुई इसके ऊपर, बड़े इसके लिटरेचर का इनकी लाइन लगा दी। ये और इसकी पूरी शागिर्दों की टीम। उस वक्त तक तकरीबन इनके पास 300 से ज़्यादा छापाखाने थे, जिससे हर हफ्ते पर्चे निकलते, हर हफ्ते संडे में मीटिंगें होती हैं और हर हफ्ते मतलब कंप्लेंट शाया करना शुरू करा। फिर इन्होंने ये हाल किया कि कोई मस्जिद, कोई दरगाह या कोई भी ऐसी जगह जहाँ मुसलमान आते जाते वहाँ नहीं छोड़ी जहाँ पर ये एतराज़ करने वाली किताबें इन्होंने कंप्लेंट जाके नहीं रखती है। हत्ता कि इनके जो पादरी थे मस्जिदों के बाहर खड़े होते, तबलीग करते, और अगर उस वक्त लाइट खत्म हो जाती, बहुत ऐसा हुआ कि भाई दिन खत्म हो गया तो लैंडलाइनों की रोशनी में और मशालों की रोशनी में रात तक सुबह तक लोगों के घर में घुसते, उनको उस रोके से उठाते और उनको तबलीग करते, और हिम्मत किसी की थी नहीं कि कोई रोक के दिखा दे। तो बेचारे बच्चा एक भी ये जबरदस्ती। दूसरी तरफ क्या था, जो ईसाई हो जाता उसको बड़े पैसे दिए जाते, मुराद दी जाती, उसके बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता, उसको इलाज के लिए अस्पताल दाखिल किया जाता। वो सब काम हो रहे कि किसी इन्होंने अस्पताल और शिफाखाने जगह जगह कायम किए। जो हकीम थे उनको बरकत की दुकानें बंद करा दी। अब किसी आदमी को अगर एक कोई तकलीफ हो गई, कोई परेशानी हो गई, वो शिफाखाने के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, और ये टैक्टिक्स आज तक लोग इस्तेमाल करते हैं कि वो शिफाखाने के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, जब वो अंदर दाखिल होने को तैयार हो रहा है तो फौरन उससे कहा कि नहीं पहले तुम्हें सैयद कबूल करो, जब तुम्हें दाखिला दी गई। ये काम उन्होंने करना शुरू करा। और फिर
की कॉन्फ्रेंस में बातें शुरू हो गई 1847 में 47 से 45 की बातें 45 की उसकी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस आयरलैंड में हुई। उसमें पूरी दुनिया के बातों को सामने इस बात को कहा कि बस हमें 4 से 5 साल चाहिए, हम इस पूरे ममालिक मुत्तहिदा को हज़रत ईसा को तोहफे में देने के लिए तैयार हैं। यानी 1850 तक उनका एक प्लान था कि 1850 तक हम पूरे ममालिक मुत्तहिदा जो है यानी आस-पास के जितने मुल्क उस वक्त के 6-7 मुल्क उनके पास थे हिंदुस्तान के नाम पर, वो पूरा का पूरा हम हज़रत ईसा को तोहफे में दे देंगे 5 साल के अंदर। अब वो हम बात नहीं कर रहे थे और हमारे यहाँ किसी की हिम्मत नहीं थी उनका जवाब देने। कुछ लोगों ने कोशिशें की तो उनकी जायदादें छीन ली गई, उनको घर से बेघर कर दिया गया, उनके ऊपर जुर्माने लगा दिए गए और न जाने क्या क्या किया। और फिर फिल्टर इसके साथी को सबसे ज्यादा हद कर रहे थे। उस हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ हमें मौलाना रहमतुल्लाह अलैह को पैदा किया। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ईरान के बहुत बड़े खानदान के फर्द थे, बड़े जमींदार थे, इतने बड़े जमींदार थे कि जब बाद में मौलाना की जायदाद की जब्तियां की गई तो उस वक्त में मौलाना की जायदाद की जब्ती का जो वो बनाया जाता है खाका का बॉन्ड्स बनाए जाते हैं, तो उस वक्त में मौलाना की जो जायदाद थी 60 या 65 रुपए की उस वक्त बैठी थी। आप अंदाजा करो कि इस वक्त की शायद अरबों रुपए की जायदादें वो होगी और जिसने जायदादों की जब्ती के पेपर बनाए होंगे वो मुहसिन तो होगा नहीं मौलाना, उसने बाकी जब मौलाना को लिखा है तो उसने क्या लिखा होगा। और अल्लाह ने बड़ी सलाहियत से मौलाना को नवाजा था। तो मौलाना ने हम किताबें शुरू करी, बाकियों के जवाब देने शुरू करे, लेकिन बाकी सुनते नहीं थे, कोई जवाब नहीं देते थे, एतराज पे एतराज करते थे। अल्लाह का निज़ाम बहुत अजीब है। अल्लाह ने एक शख्स को और मौलाना के साथ खड़ा किया, उनका नाम डॉक्टर वजीर खान था। हाँ आपको सुना था आपका नाम था मौलाना अब्दुल्ला का सुना था, वजीर खान साहब को सुना था, वजीर खान क्या का बेटा आबादी सजीनी इज़ा जमाअतना या दलील अल-मजामिउ। हमारे पास ऐसे लोग हैं कि अगर हम उनके तस्करे करने बैठ जाएं तो सुबह कर दें। बेशक ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मौजूद है। हम पढ़ते नहीं उनके बारे में, ना हम सीखना चाहते हैं, हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जब हमें इसलिए हमें गुस्सा आता जब हम अपने तलबा को देखते हैं कि यूट्यूब पे किसी बेवकूफ को सुन रहे हैं या सोशल मीडिया पे किसी पागल को सुन रहे हैं तो वो समझते हैं कि पढ़ाई में उसे कुछ भी नहीं है, वो जुल्म देखता है। आप अपने काफिर को देखो तो सही पढ़ के, आप देखो तो सही आपका काफिर से क्या क्या काम नहीं है, आप क्या क्या काम नहीं करेंगे कि जिस उनकी किताबों के सिर्फ आप सही नाम याद कर लें तो आपके ज़हन होने के लिए काफी है। उस हालात में उन्होंने काम कैसे कर लिए ये सब हमें तो इस पहल होती है। ये डॉक्टर वजीर खान साहब अल्लाह ने आपकी मदद के लिए भेजा। क्यों? वे मौलाना आलिम थे, उनको अरबी फारसी बेहतरीन आती थी, लेकिन मौलाना के पास ईसाइयत के बराह रास्त मराजे हैं। मराजे भाई जाहिर सी बात है, ईसाइयत के मराजे उर्दू या फारसी में तो थे, ईसाइयत के असल मराजे किस जबान में होंगे? इंग्लिश में, यूनानी ग्रीक जबान में थे। डॉक्टर वजीर खान साहब इस सब कॉन्टिनेंट के सबसे पहले सर्जन्स में से हैं, एमबीबीएस डॉक्टर। और मौलाना उस वक्त डॉक्टर साहब उस वक्त में ग्रीक पढ़ने गए थे, यूनान पढ़ने गए थे, बड़े झील मतलब बड़े अच्छे खानदान से पढ़ते, तो उनके घरवालों ने एमबीबीएस करने भेजा और मौलाना को कोई जानते नहीं थे, मौलाना से कोई रास्ता नहीं था। वहाँ पढ़ते पढ़ते के जहन में क्या आया कि ईसाइयत की किताबें जमा करूँ। अल्लाह का जब इनका ही निज़ाम हो रहा था उधर अल्लाह का निज़ाम हो रहा था, वहाँ पर अल्लाह सहीउल माकिरीन। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, उसके साथ वहाँ ग्रीक सीखी, उसके साथ उन्होंने कोशिश करके इब्रानी सीख ली और माशाल्लाह पैसे वाले आदमी थे तो बड़ी किताबें खरीदी। और जब फारिग होकर हिंदुस्तान आए तो बहुत सारे बक्स अपनी किताबें लाए, शायद 7 या 8 बक्स भर के उनके सारे मराजी लेकर आए। मौलाना से कोई रास्ता नहीं था। ये जो पाली फिल्टर था इसका अपना मरकज बनाया था आगरा में। आगरा में बड़े चर्च और उनके बड़े बड़े जो प्रिंटिंग प्रेस थे वो सब आगरा में थे, लखनऊ भी था लेकिन सबसे बड़ा मरकज उस वक्त आगरा में था। और बहुत सारे लखनऊ था, मिर्जापुर था, पंजाब में था, अम्बाला था और उधर लाहौर था, ये शुमाली हिंदुस्तान में ये थे और उधर गोवा था और बहुत सारे थे। हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं क्योंकि बाकी जो लोग काम करने वाले ग्रुप थे जैसे हिंदुस्तान की शुमाल में जो काम हो नीचे बंगाल और केरला तक जो काम करने वाले थे वो सब पोर्चुगीज थे उस जमाने में, और इधर तमिलनाडु के आसपास भी पोर्चुगीज काम करते थे। कहीं पे पुर्तगाली थे, इसके अलावा पुर्तगालियों के पास कहीं स्पेनिश भी आए, कई जगह फ्रांसीसी भी काम कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा अमेरिकन और ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे, यानी अंग्रेज जो थे, चाहे अमेरिकन रहे हो लेकिन असल ब्रिटेन थे वो लोग, ब्रिटानी। तो मौलाना ने सबसे पहले खत्म किताबें शुरू करी उस फिल्टर से। वो जवाब दिया मौलाना का। मौलाना ने कहा कि देखो इन किताबों के लिखने से कुछ नहीं होगा, एक बार मेरे और तुम्हारे दरमियान सीधा सीधा मुनाज़रा हो जाए। अब वो क्या करता, हमने आपको बताया था कि ये वही फिल्टर है जिसने हज़रत क्या नाम था
प्लान किया कि हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों के कौन बहुत बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। जैसे पता लगा शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह वाले को सबका ख्याल थे। इसकी जो किताब हमारे पास है उसमें उसने मुहद्दिस देहलवी लिखा, उनका नाम भी लिखा। अब उससे क्या मुरादें पड़ी, फारसी की इसकी किताब है हरुल इश्काल के बाद उसने एक किताब लिखी थी लमाई के बारिहास के नाम से फारसी में, वो हमारे पास बहुत पुराना फोटो वाला नुस्खा है, उसमें इसने लिखा इस वाक़े को। इसने हालांकि उसको घुमाया है उस वाक़े को, लेकिन जब उस पर लोगों ने तब्दील लिखी तो उन्होंने लिखा। ये वहाँ पहुंचा जुमे की नमाज के बाद, और जुमे की नमाज के बाद इसने खड़े होकर वो जो ढोल बजाने वाले लोग होते थे उस जमाने में, उनसे ढोल बजवा के कहा कि सब खड़े रहो, एक बात करनी है। लोग रुक गए। शेख साहब नमाज पढ़ा के ऊपर से आ रहे थे, कहने लगा शेख साहब इस मसले में बड़ा तरद्दुद है। उन लोगों के पास इतनी जरूरी बात है, बाहर चले जाओ, मैं बाहर चले जाऊँ, हम मेहनत कर रहे हैं, पूरा दिन खराब करते हैं पढ़ने के लिए, अगर आपको बात करनी है बाहर जाओ। शेख साहब ने उसको रोक लिया, और रोकने के बाद उसने क्या किया कि शेख साहब से कहा कि हमें सब मुसलमानों के सामने एक बात आपसे करनी है। मैंने कहा ठीक है पूछो। कहने लगा शेख साहब ये बताइए आप यहाँ सबसे ज्यादा मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के नजदीक कौन है? एक मुसलमान क्या जवाब देगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइए आप शफाअत में कितना यकीन रखते हैं? शेख साहब ने कहा कि हाँ हम मानते हैं कि हमारे जो गुनहगार लोग होंगे हुजूर उनकी सिफारिश करेंगे और उनकी सिफारिश क़यामत में कबूल की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की बात सही है। यहाँ तक बात होने के बाद उसने कहा कि क्या आपके नबी ने इस बात का जिम्मा लिया है कि जो जो सिफारिश करेगा उसकी सिफारिश कबूल होगी, क्या कोई गारंटी है? चाहे वो आदमी और जिसने ऐड किया उसमें, चाहे वो आदमी गुनहगार हो, चाहे वो आदमी शिरकत से आया हो या कुछ करके आया हो। शेख साहब ने कहा कि भाई सिफारिश की जो गारंटी हमारे किसी ने ली, आप सिफारिश करेंगे, सिफारिश आपकी कबूल की जाएगी, लेकिन ये सिफारिश मामलात में या अहकाम में कबूल नहीं होगी। ये सिर्फ सवाल को कबूल की जा सकती है, लेकिन आप तौहीद छोड़ के आए, आप नमाजें छोड़ के आए, तो सिफारिश का कोई रास्ता नहीं है। जो फराइज़ हैं, जो अहकाम है उसमें शायद, उसने कहा ठीक है ये बात नहीं होगी। फिर कहने लगा लो सुनो मुसलमानों सब, और उसके साथ वो भी खड़े थे, वो जो सीआईडी वाले लोग थे, वो जो काले वाले आदमी कहे जाते थे, तो वो भी खड़े थे कि देखो जो जवाब दे उसी को पकड़ने को। तो उसने कहा देखो सुनो मुसलमानों सुनो, तुम्हारे जो बड़े आलिम कह रहे हैं कि तुम्हारे अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा जो महबूब ज़ात है उसकी सिफारिश की कोई गारंटी नहीं है। बाइबल कहती है कि हमारे पास हमारी सिफारिश की गारंटी है। इसके बाद इसने अपनी तबलीग शुरू कर दी। शेख साहब सुनते रहेगा, बोलता रहा इसके साथ बारह खूब ताल के बजा रहे, जोश दिला रहे कि देखो हमारे यहाँ सिफारिश की गारंटी नहीं है, सिफारिश हमारे यहाँ है, हदीस सबको कबूल कर लो, तुम बख्शे जाओगे, हुक्म को कबूल करोगे, बख्शे नहीं जाओगे, या बख्शे जाओ ना बख्शे जाओ, कुछ पता नहीं। देख रहे हैं आप किस तरह से माहौल बना के लाया जा रहा है। अब ये सारा माहौल जब बन गया तो फिर इसने एक सवाल किया, अच्छा शेख साहब ये बताइए क्या हुजूर के जमाने में हुजूर ने किसी की सिफारिश की और ऐसा हुआ कि उनकी सिफारिश को रद्द कर दिया अल्लाह ने? शेख साहब सुन रहे, अल्लाह का निजाम होता है यार, ये जो लोग होते हैं बड़े अजीब होते हैं। तो शेख साहब कुछ बोले नहीं, कहने लगा अच्छा शेख साहब ये बताइए इसके बाद कि हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारे कौन थे अपने खानदान में? फिर इसने कुछ हदीस नकल की जिसके जरिए से साबित होता है कि हुजूर को हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसनैन से बहुत प्यार था। साफ बात है, इसमें कोई छुपाने की बात है नहीं। हसनैन हजरत हसनैन से आपको बहुत प्यार था, खास तौर से हजरत हसन से, हजरत हुसैन से। तो कहने लगा अब इसकी मतलब देखिए कि देखो मुसलमानों सुनो, तुम्हारे अपने नजदीक सबसे ज्यादा जो महबूब है उनके नजदीक जो सबसे ज्यादा महबूब है कहानी, तुम्हारे आपके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हजरत हसनैन। हजरत हसनैन को करबला में शहीद कर दिया गया। क्या तुम्हारे नबी ने अपने रब से मांगा नहीं कि उनको बचा ले इस परेशानी से, इस तकलीफ से, और जो उनके ऊपर जो परेशानियां मुसीबत आने वाली थी? चुप हो गए। आप देखें ना कहां से कहां जुड़ा है उसका लाके, किस खिलाफ पर मैंने आप उसकी एक बात का खुलासा कर लें कि देखो तुम कहते हो कि तुम्हारे नबी पाक का सबसे ज्यादा महबूब, उनके जो सबसे ज्यादा महबूब हजरत हसनैन है, जब उन्हें करबला में शहीद किया जा रहा था तो तुम्हारे नबी ने अल्लाह से मांगा नहीं, चाहे जन्नत में हो हमसे नकल करना नकल कुछ नबाशत बात आती है। यस आती होगी इसकी बात है। तो देखो तुम्हारे नबी ने कहा या नहीं कहा, और अगर कहा तो उनकी बात को बोली की गई,
किया गया और किस गलती से किया गया ये आप समझाते हैं। अब शेख साहब चुप रहे पहले तो, अब उन्होंने जो नगाड़े बजाने वाले थे वो सब शेख साहब को हटा के पास में खड़े हो गए और उनको जलील करने के लिए उनके हिसाब से खूब जोर जोर से ढोल बजाने लगे, जवाब दो जवाब दो जवाब दो। शेख ने हाथ उठाया बड़े प्यार से, शेख ने कहा हाँ उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की थी, उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की थी। तो वो बोले अच्छा फिर क्या हुआ? तो शेख बोले अल्लाह ने मना कर दिया। अल्लाह ने क्या किया? मना कर दिया। उसका तर्जुमा भी हमारे पास लिखा है, अल्लाह ने मना कर दिया। तो वो कहने लगा अच्छा ये तो हम कह रहे हैं, ये तो हम कहना चाह रहे थे। तो वो अपने नवासों को बचा नहीं पाए। बड़ा की बात को सुनो, अल्लाह ने क्या कहा मना करने के बाद? अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे नवासों को कैसे बचाऊं? मेरा अपना लड़का 2000 साल से सूली पे चढ़ा हुआ है। अब तो बस सारे डराए बच्चे जितनी बाइबलें लिखी हुई थी वो रख ली गई। ये जुमे से शुरू हुआ था, रसों तक चल रहा था, सब खामोशी छा गई। तो कहने लगा ये क्या बात हुई? उसने कहा जब तुम्हारा तस्वीर ये है कि खुदा का इकलौता बेटा उसको चढ़ाया गया और शेख में बाइबल नहीं पढ़ी थी, लेकिन अल्लाह ने वो ज़हानत दी थी कि वो जो चीख चीख के एक आदमी बाइबल की इबादत पढ़ रहा था, शेख ने उसकी सुनी और उसी को उस उल्टा इस्तिशाद कर दिया। इसका नाम है इल्म। वो चूरन बेचने वाले टीवी पे वो इल्म रख के ये है इल्म। तो शेख ने फौरन इस्तिशाद कर दिया कि वो आदमी चिल्ला रहा था कि देखो ये बाइबल की आयत है, इंजील ईमान की बाकायदा आयत, और इस आयत को दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। हर बाइबल का मुअल्लिफ जब बात शुरू करेगा तो इसी आयत से शुरू करेगा कि खुदा ने गॉड लव्ड दिस वर्ल्ड सो मच, खुदा ने दुनिया से सबसे ज्यादा मोहब्बत की, एंड ही गेव हिज ओनली बिगोटन सन, उसने अपना इकलौता बेटा दिया, एवरीबॉडी वुड बिलीव इन हिम, जो भी आदमी उसके अंदर यकीन करे he will get everlasting life, तो हमेशा हमेशा की जिंदगी पाए। तो शायद यही बात उसको पढ़ रहा होगा कोई खड़ा हुआ, शेख ने सुना, शेख ने कहा देखो वो कह रहा था सुनो। तो अल्लाह ने कहा कि मेरा अपना बेटा 2000 साल से क्रॉस में लटका हुआ है, मुझसे नहीं उतार सका, तो तुम्हारे नवासे को कैसे बचाऊं? तो बड़ा गुस्सा हुआ। शेख ने कहा अगर तुम्हारा ये अकीदा बातिल है तो क्रॉस पे चढ़ाए गए, और अगर तुम क्रॉस पे चढ़ाए गए उतारे न जा सके तो तुम्हारा खुदा कमजोर है, ऐसे खुदा की इबादत नहीं करते, हम तो कुव्वतुल मतीन की इबादत करते हैं, और अगर खुदा कमजोर नहीं है तो तुम्हारा ये अकीदा बातिल है। और फिर शेख ने फौरन कहा कि कहीं ना कहीं तो तुम्हारा अकीदा बातिल है, और शेख ने बाइबल नहीं पढ़ी थी। फिर आप सेंट पॉल की बात करके आप याद कर लीजिए, सेंट पॉल ने कोरिन्थियन 2:24 में कही है कि इफ एनी टाइम इट बी प्रूवन, अगर कभी भी बात साबित हो गई कि हजरत ईसा सूली नहीं दी गई तो हमारी सारी तबलीग जो है हमेशा हमेशा के लिए बेकार हो जाएगी। सेंट पॉल की बात मौलाना के सामने नहीं थी, शेख के सामने नहीं थी, लेकिन शेख ने साफ कहा या तो ये बात झूठी है कि उनको सूली पे नहीं चढ़ाया गया, और अगर उनको सूली पे चढ़ाया गया तो ऐसे बेबस खुदा की इबादत हम नहीं करते। और फिर सेंट पॉल की आप इबादत याद करिए, उसने किस दर्द की वाली बात की, किस खौफ की वाली बात नहीं की, मुझे पता नहीं चीज है। उसने कहा अगर कभी भी ये बात साबित हो गई कि सूली वाला मामला नहीं हुआ तो हमारी सारी तबलीग उसी दिन बेकार हो जाएगी। ये था सुनना जिसने इसका एक अमल हमने आपको बताया, सैकड़ों वाकयात में इसके साथ मुनाज़रा करने के लिए मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने इसको खत लिखा, इसने जवाब नहीं दिया। तो उस जमाने में मुसलमानों में एक अखबार निकलता था, तो मौलाना ने अपना पूरा खत मुनाज़रे की जो दावत थी उसको अखबार में छपवाई। अब जब अखबार में छप गई तो इसने जवाब देना था, इसने जवाब दिया, इसने कहा अभी हम नहीं कर सकते और ये है और वो है। फिर इसने कहा कि ठीक है मैं आपसे कुछ सवाल अखबार के जरिए करूंगा। तो अखबार के जरिए मुनाज़रा शुरू हो गया खतों के जरिए। इसने कुरान करीम की कुछ आयत में इत्तबास किया, तो कुरान करीम की कुछ आयतें हैं उनके अंदर नहाज़ार साहिर आने वाला जो मसला है, जैसे सुनिए आपने पढ़ा नहीं है इसके बारे में, पढ़िएगा इसको। तो इस तरह से इसने चीजें ली, फिर हुजूर कत्तार की बहस लेकर बैठ गया, फिर उसके बाद जो था इस बात की बहस लेकर आ गया कि कुरान करीम में जो था मूसा को उस्मानी है, मूसा के सिद्दीकी कोई चीज नहीं है। ये सब बातें मतलब ऐसे सवाल जिससे आवाम पढ़ के मुंतशिर हो, मुनाज़रा नहीं कर रहा, अखबार में छपवा रहा है कि भाई अखबार में तो हजारों लोग पढ़ेंगे, अब आप किस के पास जाके उसको समझाने जाएंगे? अखबार में सवाल लिख दिया, अब जवाब तो है नहीं। तो फिर शेख ने भी जवाब लिखने शुरू करेगा रहमतुल्लाह साहब ने। तो डॉक्टर वजीर खान का ताल्लुक मौलाना से यहाँ पर हुआ, तो उन्होंने भी जवाब लिखने शुरू करे, फिर आपस में एक दूसरे का ताल्लुक हुआ, फिर दोनों इकट्ठे हो गए आकर पहुंचे, और फिर ये वहां पर 1 महीना रहे, ये नहीं मिला। इसने कहा मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ। इसके एक और दूसरे जो मुआविन थे इसके पादरी फ्रेंड उनका नाम था, लेकिन उनको उर्दू नहीं आती, उनको उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी, वो जाहिर कर रहे थे कि मुझे उर्दू नहीं आती। तो मौलाना कई बार इससे मिलने घर गए, ये नहीं मिला। आखिरकार जब फिर मौलाना वापस आए और इसके नाम एक रुपा लेकर आ गए कि मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैंने तुम्हारा 1 महीने इंतजार किया,
लेकिन आप इसे ना समझिए कि मुनासा करना इस वक्त में बहुत अच्छी बात है। उस वक्त की बात है, आज से 200 साल पहले की 1854 में ही मुनासा हुआ था। आखिरकार जब ये सारी बातें हुकूमत को पता लगी तो हुकूमत के बड़ों ने कहा तुम क्यों नहीं करते मुनासा, पहले तो तुम बड़ा मुसलमानों को ईसाई बना रहे थे। अब जब हुकूमत से पेशा हुआ तो मुनासा तय हो गया 17 अप्रैल को या 10 अप्रैल को 1854 यानी बदर वाली जंग से 3 या 4 साल पहले आगरा में कटरा अब्दुल मसीह खां में मुनासा तय हो गया। और मौलाना ने कहा कि हम अपने साथ एक मुआविन रखेंगे, आप अपने साथ एक मुआविन रखो। तो मौलाना डॉक्टर वजीर खान साहब को, ये वही वजीर खान साहब है जिन्हें अल्लाह ने कुदरत के निजाम के तहत इतनी ढेर सारी किताबें लेकर वहां भेजा था, और उसने अपने फादर फ्रेंड्स को लेकर मुनासे के लिए तैयार हो गया। तो वजीर खान साहब ने खुद अपनी याददाश्त में लिखा है कि मौलाना की जहानत का ये आलम था कि आपकी फारसी को छोड़ दीजिए, मौलाना हदीस की उनसे बात करने की जरूरत ही नहीं थी। और आपने हमेशा के बाद बुलाया था, कहने लगे डॉक्टर साहब अब फलक की बात की आपकी आप इबादत पढ़ के हमें बता दीजिए। तो मौलाना डॉक्टर साहब उर्दू में इबादत पढ़ते और मौलाना सिर्फ उसको सुनते। और 15 दिन के बाद मौलाना का यह आलम था कि जब मौलाना ने मुनाज़िर में बात करना शुरू करी है तो फिल्टर खुद ये कह रहा था अपने उस मुआविन से कि इस आदमी की जिंदगी ईसाइयत में गुजरी है, या तो ये ईसाई है, ये ईसाइयत में इतनी गहराई से जानता है जितनी गहराई से हम भी नहीं जानते। 3 दिन मुनाज़िर के तय हुए और ये तय किया गया कि जो हारेगा वो उसके मज़हब जीतने वाले के मज़हब को कबूल कर लेगा। एक ही मुनाज़रा हुआ, मौलाना पहले दिन मुसलमानों को तहरीक साबित कर दी थी, मुसलमानों ने तहरीक साबित कर दी। तो वो पहले तो ये इनकार करता रहा, उसके बाद कहने लगा 2-4 जगह 10-12 जगह तहरीक साबित होने से कुछ नहीं होता, ये काफी दिन से शुरू कर दिया। मौलाना बोले 2-4 जगह अभी रुको, तो हम कल को बात करेंगे। ये बोला अब वक्त ज्यादा हो गया, कल को बात होगी। फिर अगले दिन 10 की बात करनी शुरू करी मौलाना ने, तो 10 वक्त तकरीबन मौलाना ने और डॉक्टर साहब ने उस दिन 250 जगह तहरीक साबित करी। और जब इतनी जगह तहरीक साबित कर दी, मौलाना कह रहे अब ये तुम्हारे नुस्खों के एतबार से है, अगर हम और जबानों पर उसमें फारसी के नुस्खों पे आपको से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा अगर हम बात करें तो तुम्हारे मुफस्सिरीन ने 8,000 जगह, इनका बड़ा कमेंटेटर है मुफस्सिर है, उसने 8,000 जगह नुस्खों में इख्तिलाफ किया है कि इस जगह नुस्खों में रद्द बदल है। तो जब इतनी बहसबाजी हो गई तो जो अंग्रेज वहां बैठे हुए थे वो भी हैरान हो गए कि हो क्या रहा है। उनको हिंदी उर्दू नहीं आती थी, तो उन्होंने तर्जुमान से पूछा कि ये क्या हो क्या रहा है, मौलवी तरह बोल रहे हैं, हमारे आदमी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। सही लोग होते हैं उनको सब समझ में आता है, जबान आए ना आए, तो ये दोनों चुप क्यों पड़े। तो उन्होंने कहा कि बाइबल के जो नुस्खों के अंदर इख्तिलाफात है उनकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं। तो बोले हमारे पास भी क्या कहना है, बोले ये भी जवाब ही नहीं दे पा रहे। तो 2 दिन ये मुनाज़रा चला और तकरीबन 1000 लोग वहां पर जमा थे। 30वें दिन मुनाज़रे के पे आने से मना कर दिया और बाकी फ्रेंच अकेले आए, पहले वो सुनते रहे, उसके बाद बोले मेरी माजरत में मुझे उर्दू नहीं आती। उन्होंने तर्जुमान से कहा इसलिए मैं मुनाज़रे में शरीक नहीं होना चाहता, मेरे साथ जो दूसरे साथी थे वो आए नहीं और मेरी तरफ से माजरत है, मुझे आप लोगों की ज़बान नहीं आती। ये कहकर वो मुनाज़रे से चले गए। उसके बाद मुनाज़रे का खत्म का ऐलान कर दिया गया और 2 साल के बाद ही बदर हो गया। बदर में मौलाना बाकायदा शरीक हुए, जो अल्लाह अपने मुल्क को छुड़ाने के लिए मौलाना कोशिशें की, तो उन्होंने मौलाना को बाकी करार दे दिया। मौलाना की सारी जायदाद जब्त कर ली गई। कराने की जामा मस्जिद में मौलाना ने बाकायदा अपनी छोटी सी हुकूमत बनाई थी, वो सारी जायदाद जब्त कर ली गई। मौलाना के खिलाफ वारंट निकाल दिए गए। मौलाना बड़े छुपते छुपते हिजरत करते हुए मक्का चले गए। मौलाना मक्के पहुंच गए। अब फिल्टर की इतनी जिल्लत यहाँ पर होगी वो भी नहीं रुक सकता था। वो यहाँ से बड़े कुछ पहले ईरान पहुंचा, ईरान से आर्मेनिया और आर्मेनिया से तुर्की पहुंचा। वहां उसने जो आके खूब लोगों को उड़ाना शुरू कर दिया कि बड़े मुझे इंटरनेट का दौर तो था नहीं, जो आदमी की कहानी सुना दे उसकी बात मानी जाएगी। तो फिल्टर की बात फिल्टर ने वहां कहा और वहां तबलीग करना शुरू करी। जो काम यहाँ करता था वो वहां करने लगा। अच्छा, अंग्रेजों का इससे मोहब्बत नहीं रह गई, उनके नजदीक तो ये बगैर गोली का आदमी हो गया। मुसावा छोटा सा जो बच्चों को पटाखा होता है, उन्होंने इसे यहाँ से भगा दिया, पटाखा भी बंद कर दिया इसकी, तो ये यहाँ से चला गया। फिर इसने तुर्की में हरकत करना शुरू करी। तुर्की में उस वक्त तक उस्मानियों की हुकूमत थी, सल्तनत खिलाफत। तो वहाँ के बादशाह को जब पता लगा एक आदमी ऐसे ऐसे कहता है कि हिंदुस्तान के सारे उलमा को शिकस्त दे के आए हैं, एक बड़ा मुनाज़रा हुआ, उसमें मैंने उन उलमा को मजबूर कर दिया। तो उन्होंने मक्का के गवर्नर को लिख के भेजा कि अब जो लोग हज करने आएंगे इस बार हिंदुस्तान से, तो जरा उनसे पूछ के देखो कि क्या वाक़या हुआ। मौलाना इत्तेफाक की बात यह है, इत्तेफाक की बात मौलाना मौजूद थे, तो गवर्नर ने लिख के भेजा साहब वो आदमी है मौजूद है, तो फौरन खिलाफत से हुक्म उनको भेजो। अब मौलाना हम पहली बार दुनिया के मौलाना सफर किया, तो मौलाना वहाँ पहुंचे हैं तो वो खबर मिल गई, तो वहाँ से निकल गया। तो उसके बाद सुल्तान से मौलाना से कहा कि आप जो समझते थे वो लोग नहीं पैदा होते, और वाकई हकीकत है। आप जब हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा मौलाना रहमतुल्लाह अलैह साहब क्या चीज़ थे। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से ऐसे वापस न जाएं, हमें खाली हाथ छोड़ के एक किताब कम से कम आपने जो वहाँ पर मुनाज़रा हुआ उसकी किताब
باقاعدہ مدرسہ ہے، اکلوتا مدرسہ ہے جو مدرسہ ہے، آج مولانا کے خاندان کے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اظہار الحق مولانا نے اس وقت تسلیم فرمائی اور اللہ نے اس کتاب کو اتنی مقبولیت دی کہ حالات میں لاکھ کی تعداد میں اس سے تقسیم ہوتے تھے، اور ایک بڑے عالم کو آ کے انہوں نے اس فارسی ترجمے کا عربی ترجمہ کرا جو بحث شریف کے نام سے خود تقسیم ہوا۔ کوئی پورا مناظرہ اس کے اندر ادارہ مناظرہ ہے، عثمانی صاحب نے بائبل کے ذریعے کا ترجمہ کرایا، بائبل کو قرآن تک اس کو استاد مولانا اکبر علی صاحب نے، تو اس کے حاشیے میں پورا مقدمہ مولانا نے لکھا ہے۔ وہ تو ہم آپ کو کہہ رہے تھے پہلے عربی پڑھیے اس کی نحو الحق کی، اس کا اختصار بھی ہے، اس کی تفصیل بھی ہے، مختصر والا حصہ بھی ہے، جلد والا سب شکل میں موجود ہے، آپ چاہیں تو نکال کے دیکھ لیں۔ اور اس کتاب سے اتنی برٹش گورنمنٹ پریشان ہوئی، اتنی پریشان ہوئی کہ ساری دنیا آج تک اس کے رد لکھتی ہے، ان کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، ان چیئرز ہیں جو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے کاموں کو اسٹڈی کرتی ہیں، کیونکہ مولانا کی اس کے علاوہ بھی 6-7 کتابیں اور ہیں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ کتاب دنیا میں ایسی چھپتی رہی تو دنیا میں عیسائیت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کا فرینچ ترجمہ بھی ہوا، گجراتی بھی ہوا، شاید انگریزی ترجمہ تو ہمارے پاس بھی ہے اس کا، اور بہت سارے زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہوں گے۔ ایک کتاب اور ہے مولانا کی ازالۃ الاوہام، اصل فارسی میں ہے لیکن اردو میں ترجمہ ہوا تھا، لیکن اردو ترجمہ لینگویج کا ہے، آسانی سے پڑھا نہیں جاتا، بہت زیادہ پرانا وسیلہ ہے، اس کا اچھا نسخہ ہمیں نہیں ملا۔ ازالۃ الاوہام، ازالۃ الشکوک بھی مولانا کی کتاب، پہلے ازالۃ الاوہام لکھ لیجیے، اور بہت ساری کتابیں مولانا کی ضائع ہو گئی، نہ جانے کہاں گئی، کیونکہ جب مولانا کی جائیداد کو ضبط کیا گیا تو ساری کتابیں بھی ضبط کر لی، اس میں مولانا کی بہت سارے مخلوقات، سب ضائع ہو گئے، لیکن ازالۃ الاوہام خوب چھپی ہے، لیکن فارسی میں ہے۔ ازالۃ الاوہام نے آپ کو بتائی بائبل سے قرآن کا جس کا 3 حصوں میں ترجمہ ہوا، پھر مقدمہ اس کا اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ الگ سے سائنس کے آگے کی شکل میں شائع ہوا۔ ازالۃ الشکوک بھی ہے، ایک کتاب مولانا کی، کتاب مولانا کی ہے اعجاز عیسوی، اعجاز عیسوی، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، یہ اردو میں ہے، اس کا ترجمہ ہوگا آسانی سے مل جاتا تھا پہلے، ابھی ملتا ہوگا۔ ایک اور کتاب ہے مولانا کی پوری تصنیف پہ ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، ابھی میں 400 پیج کی، احسن الحدیث کی ابطال التصنیف، احسن الاحادیث، حدیث نہیں احادیث ہے، احسن الاحادیث فی ابطال التصنیف، اس کے دو نسخے ہمارے پاس ہیں، ایک میں احسن الاحادیث چھپا ہے اور دوسرے میں اوضح الاحادیث چھپا ہے۔ اصل اللہ مولانا کا کام بھی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے کام کی ہی طرح ہے، بس فرق اتنا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب کا جو کام ہے وہ غزل سے پہلے کا ہے، مولانا محمد علی مغلی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے وہ سارا کا سارا غزل کے بعد کا ہے۔ لوگ مولانا مغلی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ عام طور سے جانتے ہیں لوگ جو بانی نظرت علماء ہیں، لیکن مولانا کا عیسائیت میں خوب کام ہے، وہ تشریح نہیں ہے مولانا کے کام کی، وہ آپ کی سنت ہے کہ آپ مولانا کا کام کو پڑھیے، اس کی کتابوں کو دیکھیے، اس کی شکل میں جا کے اور آپ ان سے کچھ حاصل کریے، ہمیں بھی اسے پڑھنا چاہیے، لیکن عام طور سے مولانا کے کاموں کی تشریح نہیں ہے۔ مولانا کی بھی ایسی کتابیں ہیں جیسے ڈاکٹر مولانا رحمۃ اللہ صاحب کی کتابیں ہیں، مولانا بھی پڑھ ہی رہے تھے، مولانا رسول اللہ صاحب کے پاس پڑھنے گئے تھے، اس وقت نسبت علماء قائم نہیں ہوا تھا، تو مولانا رسول اللہ صاحب کے پاس علی گڑھ اس کے پاس ان کی جائیداد کی جاتی وہاں پڑھ رہے تھے، تو عیسائیوں کی ساری دوبارہ سے اچھا اس کے بعد انہوں نے اور قانون بنائے، 1857 کے بعد انہوں نے اور قانون یہ بنائے کہ اگر کوئی مسلمان عیسائی ہوگا تو وہ جائیداد سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے تو یہ قانون تھا کہ کوئی ہندو اگر عیسائی ہو گیا یا کوئی مسلمان عیسائی ہو گیا تو وہ جائیداد سے اس کو آگ کرنے کا اختیار اس کے گھر والوں کو ہوتا تھا کہ بھائی آپ عیسائی ہو گیا اسے جائیداد نہیں ملے گی، تو لوگ ڈر کے مارے بھی نہیں جاتے تھے۔ اب انہوں نے قانون بنایا کہ اگر کوئی عیسائی ہوگا تو اس کی جائیداد روکی نہیں جا سکتی، اس کی جائیداد مل جائے گی اس کو۔ اور پھر جب انہوں نے جب 1857 ہو گیا تو حکومت کے نظام میں تبدیلی ہوئی، اب تک حکومت جو تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس تھی، اب برٹن کی جو حکومت تھی اس نے کہا نہیں تم ہٹو، اب حکومت براہ راست کم کریں گے، تمہیں صرف کچھ پیسہ دیے کہ سال کا پیسہ ملے گا، لیکن ہمارے ہاتھ میں براہ راست اب حکومت ہوگی، انہوں نے وائس
किसका? हुकूमत ब्रिटानिया का, यानी मलिका के हाथ में आ गई, क्राउन के हाथ में आ गई पूरी हुकूमत की। और डाकिया निजाम हो गया, उस वक्त तक वो आ गए थे, जो वायरस थे, छोटे वाले वायरस, कुछ किस्म की चीजें थी वो आ गई थी, रेल की पटरियां बिछा दी गई, यानी पूरे मुल्क में चलने फिरने का, पूरे मुल्क में हुकूमत का, पूरे मुल्क में ज़बान का एक निजाम हो गया। तो मजहब भी एक होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को 6 महीने का या 1 साल का वक्त देते हैं कि जल्द से जल्दी अपने मजहब को कबूल कर लें, अपने लड़कों को स्कूलों में डालें, अपने लड़कियों को हमारे स्कूलों में डालें, और जितने यतीम लोग हैं उनको लिए यतीम खाने खोले जाएं। और साफ उसने कह दिया जो भी आदमी नौकरी में है, एक हद से हद 3 से 4 हफ्तों में वो बपतिस्मा ले ले। अब सोचिए कितना खतरनाक वक्त लोगों पर आया होगा। अगर सांस लेनी है तो ईसाई बनना पड़ेगा। अल्लाह रसूल से मुनव्वर करे हमारे अकादमी, उन्होंने वो काम किए हैं कि पूरी ईसाई दुनिया आज तक सर घूमती है कि गुलाम कौमों में ऐसे लोग कैसे पैदा हो गए, जिनके पास वसाइल थे, जिनके पास जान के इरादे थे, उन्होंने वो काम कर दिए जिसको काम के रद्द के लिए ईसाई अकेडमीज काम करती हैं। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह और डॉक्टर वजीर खान साहब की सिर्फ एक किताब के लिए पिछले 150 सालों से उनकी सैकड़ों अकेडमीज बनी हुई हैं जिसके रद्द पे काम करती हैं, पढ़ाती हैं, और जो तबलीग करने वाले हैं उन लोगों को बाकायदा इसका रद्द पढ़ाती हैं कि देखो मुसलमानों के पास इनका ये हाल है। हमारे पास खुद एक किताब है जो आईनेट से शायद हुई, डाउनलोड करी हमने नेट से, जिसके रद्द पे लिखी गई, 3 जिल्दों में है। उसमें बाकायदा उसने पादरी ने वो उनके निसाब की किताब है, तो पढ़ने वाले तलबा को, बच्चों को बाकायदा बताया है कि इनके मौजूद से कैसे गुफ्तगू करो। यह बात इज्जत की है। अल्फा गुमा शहीद मिल आगा, बड़े एक आदमी बोला, मैं लोगों को आगे भी नहीं आती क्या भाई, बड़ा हल्के से तो एक आदमी बोला अल्फा गुमा शहीद मिल आगा, ठीक है। तो सिर्फ मौलाना के काम में ये फर्क है कि रहमतुल्लाह साहब ने जब काम किया वो 1857 से पहले किया, और मौलाना मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो काम है वो 1857 के बाद का है। तो मौलाना भी पढ़ रहे थे, ये सब बात शुरू हो गई, मौलाना ने अखबार निकाला रसूल मोहम्मदी, हम बड़ी तलाश करते हैं इस अखबार की, अल्लाह ताला आप लोगों को देखने का मौका अता फरमाए। हमने 1-2 कॉपियां देखी हैं, 5 साल तक मौलाना ये अखबार निकालते रहे रसूल मोहम्मदी, और इस अखबार के जरिए मौलाना ने जो ईसाइयत का रद्द किया है, तकरीबन उस वक्त 150 पर्चों का रद्द मौलाना इस अकेले अखबार से किया करते थे, रसूल मोहम्मदी से, कानपुर से निकालते थे। अभी नब्बे को कायम नहीं किया, अभी मौलाना पढ़ रहे थे, कोई नब्बे वजूद में नहीं आया। जी, फिर मौलाना अपने कुछ घरेलू जिम्मेदारियों में ज्यादा मौलाना के काम में मशगूल हुए, तो ये अखबार निकलना बंद हो गया। मौलाना को इसका बड़ा अफसोस होता था, लेकिन मौलाना काम करते रहे। उसी बीच में पादरी ने किताब लिखी कुरान करीम के रद्द में। कुरान करीम में उसने बड़े कुरान करीम में बहुत सीधे अल्फाज में रद्द करने की कोशिश करी, और मुसलमानों को ये दिखाया कि मुसहफ उस्मानी से पहले कुरान करीम का कोई मकतूबा नुस्खा नहीं था, हालांकि झूठ है। हुजूर के ज़माने में मौजूद थे, आपने पढ़ा होगा, तनवीर कुरान की किताब पढ़ के आया तो हमने कहा था हमने पढ़ने के लिए, कौन सी पढ़ के आए थे? उलूमुल कुरान, उलूमुल कुरान, और कौन सा पढ़ गया है? तफसीर के मुकद्दमे में देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो मौलाना ने इसके रद्द में किताब लिखी, बड़ी आदत की किताब है, लेकिन बहुत कम मिलती है, अल बुरहान लिखी कुरान। आपका पीएचडी का मुबारक किया हो गया, आपने एक चीज बता दी आपको, आप अगर इस मुद्दे को थोड़ा सा लिख दें तो कैसे करने आपकी बात इस पर उत्तर हो गया, पूरा तैयार आपका अल बुरहान लिखी कुरान। मौलाना की इसके अलावा एक किताब और है मिलाद यकीन, मिलाद यकीन। हमने ईसाइयत के साथ सब किताबें नहीं लिखवाई है, अगर कोई सोचे कि मौलाना बहुत सारी किताबें ले लेंगे आप, हमने सिर्फ निसाब का पास है ताकि ऐसा निसाब ऐसा सिलेबस आप उसको पढ़ सकें, बस इतनी किताबें लिखवाई। हालांकि बहुत सारे किताब हैं, कश्मीर के बड़े आलिम हैं मौलाना रहमतुल्लाह साहब ना बांदीपुरा वाले, उनकी भी बड़ी अच्छी किताब है ईसाइयत में। आज तो बहुत सारी और छोटी-छोटी बहुत सारी किताबें, लेकिन हमने कुछ किताबें लिखवाई हैं आपको। एक मौलाना की और किताब है आईना इस्लाम, ये सब रद्द लिखे हैं। एक बात ये सबसे रही है, एक और आईना शीशा। ये किताब और है मौलाना की तलबीसात, सुने कभी नाम आपने?
इसके एक दूसरे पे दाग करके साथ भी लिखा है। लेकिन ये किताब हमने देखी नहीं अभी तक, शफीक नहीं पढ़ पाए। मौलाना की जो एक बड़ी शानदार किताब है, ये रहमतुल्लाह साहब की भाषा के बराबर है, इसका नाम है पैगाम मोहम्मदी। वो पैगाम मोहम्मदी ये 2 जिल्दों में है, बिल्कुल इज़हार हक़ की तरह है, जैसे ज़ाउल हक़ है, जैसे ज़ाउल हक़ मौलाना रहमतुल्लाह की सबसे बड़ी किताब है, ऐसी ही ये किताब जो है ये मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह की सबसे बड़ी किताब है, पैगाम मोहम्मदी 2 जिल्दों में है, शिबिर में है ऊपर। देखते हैं हम ऊपर कौन निकालता है। हम रोजाना स्टडी जाते हैं और हम देखते हैं किताबें किसकी लोगों ने निकाली नहीं होती, लेकिन हम देखते हैं बहुत कम लोग किताबों को निकालने के यहाँ बताते हैं। अब कल को हम रिपोर्ट लेने के लिए ऐसे फॉर्म कर करके गए हम लोग कौन सी किताबें निकाली इंशाअल्लाह। चलिए पढ़िएगा। ये मौलाना रहमतुल्लाह साहब की किताबें हमने बता दी, ये मौलाना मुंगेरी रहमतुल्लाह की किताबें बता दी। मौलाना कासिम साहब मौलाना की बहुत सारे रसाइल हैं, लेकिन उनका एक सबसे बड़ा जो काम था, ये जो शाहजहांपुर है यहाँ करीब में, आपने नाम सुना होगा जी, यहाँ पर एक बड़ा मेला करा था अंग्रेज लोग, ये पादरी और जो शुद्धि वाले लोग थे, दयानंद सरस्वती के लोग आर्य समाज के, वो एक बड़ा मेला हर साल कराते थे, उसका नाम था मेला खुदा शनासी। यानी उसके अंदर तीनों मजहब के लोग अपनी अपनी तकलीफ करें, जिससे भी जो सवाल पूछना होगा कोई भी सवाल पूछ सकता है। एक साल उन्होंने पूरा प्लान कर लिया, तो उन्होंने मिलकर कि मुसलमानों में से किसी को बुलाएंगे, हम जाहिर में तो ये करेंगे हमारा आप मुनाज़ा करना है, लेकिन हम नहीं करेंगे, तो दोनों मिलके जो मुसलमान आली है, मुसलमान नुमाइंदा आएगा, उसके पीछे पड़ जाएंगे, वो जवाब दे पाएगा। तो उन्होंने इसके लिए भेजे था खुद भेजे, अगली में कॉलेज था बड़ा, उसमें खुद भेजे, शायद मौलाना महमूद अली साहब के पास तक भेजा कि भाई जो आदमी इस काम के लिए तैयार हो तो फलां फलां तारीख को मेले में आ जाए इंशाअल्लाह। उन्होंने फौरन मौलाना कासिम साहब से कहा कि आप चले जाइए, तो अपने रुफका को लेकर इस मेले में पहुंचे। मौलाना ने 3 दिन तकरीर करी, जिसमें मौलाना कभी फालतू से बहस करते, कभी प्रैक्टिकल से बहस करते, कोई किताब मौलाना के सामने नहीं थी, लेकिन मौलाना इतने हवाले देते कि लिखने वाला में लिखता है कि वहाँ मौलाना के 10 से 15 लोग इधर हवाले लिख रहे थे और 10 से 15 लोग मौलाना के उधर दलाइल और हवाले लिख रहे थे। उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे और ईसाई भी थे। उनके पास पूरी तैयारी, मौलाना काम छोड़ के बीच में छोड़ के गए थे, बल्कि लोगों ने लिखा किसी काम में मशगूल थे, खत आया कि वहाँ जाना है, उसी हाथ में चले गए बगैर किसी तैयारी के। इसका नाम है इल्म। इसे कहते हैं कि आपको 12 बजे आपको सो को उठाया जाए तो आपका या 3 बजे सो को उठाया जाए, आपको हवाले ऐसे याद हो जैसे आपको अपना नाम याद है। इसका नाम है इल्म। मौलाना उसी हाल में तशरीफ ले गए, क्योंकि मौलाना ने अपने बड़ों से सुना कि इस वक्त मुसलमानों के ईमान का मसला है। मौलाना मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि मौलाना मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे को काम में देखा कि तुम यहाँ हो, मेरे दिल का ये हाल हो रहा है, इसका कुछ ऐसी मजमून है। तो मौलाना ने पहले तो सिर्फ अपनी जो इबादत मौलाना करते थे, जाती काम को छोड़े, उसके बाद मौलाना जो फराइज थे, वाजिबात थे, उसको छोड़ कफिल थे, वहाँ तक तो वो सुन्नत थी, वहाँ तक तो मौलाना उसका मुदावमत की, लेकिन मौलाना नवाफिल छोड़े, रात का सोना छोड़ा, आपने तहज्जुद भी छोड़ी, सारे वक्त भी मौलाना लिखा करते थे। तो उम्मत के ईमान का मसला है, अगर मैं नवाफिल में तस्बीहात में रहूंगा तो उम्मत का ईमान नहीं बचेगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? आप मोबाइल चलाते हैं, उम्मत का ईमान जा रहा है, आप मैच देख रहे हैं, उम्मत का ईमान जा रहा है, आपके घर वालों ने अल्लाह ने आपको इस काम को चुना है, आप मैच देख रहे हैं। मैच देखने की दुनिया में 1 करोड़ लोग हैं बेवकूफ किस्म के, आप मैच देखने के लिए पैदा किए गए। आपका काम लोगों का ईमान बचाना है, इसका अल्लाह ने आपको जवाब देना है। मौलाना 3 घंटे सोते थे, आपकी उम्र में मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह जब ये काम कर रहे थे 3 से 4 घंटे सोते, और सारा का वक्त मौलाना अपना सिर्फ और सिर्फ ईसाइयत में और रद्द फातिहा की तस्दीक खलीफ में लगाते। तो ये किताबें वजूद में आई हैं, 400 पेज की किताबें, और इस दर्जे की किताबें कि दुनिया 150 साल बाद से पलट करें कि ऐसी वजूद में नहीं आ जाती मेरे दोस्तों। खैर मौलाना का मौलाना वहाँ गए शाहजहांपुर में, बड़ा मुनाज़रा हुआ, उसको बाद में किसी साहब ने मबाहिसा शाहजहांपुर के नाम से उसको शायद किया, और वो बड़ा तवील है, अच्छा खासा है, 750 पेज का था, और पढ़ा भी नहीं जाता था, बड़ा बोसीदा हो गया था, पुराना खत था। तो अब शायद इस्लाम अकेडमी जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से एडिट करके दोबारा से शायद किया है। हमने नया वाला देखा नहीं, लेकिन सामने हमें फोटो भेजे थे।
आएंगे तो वीडियो में इंशाल्लाह कर लेंगे उसको। मबाहिस है लेकिन ये बड़ा बड़ा इल्मी है, इल्म कलाम की बहुत सारी बहसें इसके अंदर है तो उर्दू में कौन सी ऑनलाइन इसके मबाहिस शाहजहां पर। तो ये तीन हमारे काबिल हो गए जिनसे काम का हमने तारुफ कराया। मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने काम का तारुफ और उनके साथ डॉक्टर वजीर खान साहब, हाँ मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी साहब के साथ भी एक शख्स थे, तकरीबन मौलाना बख्श का नाम था, उनका भी यही हाल था। उन्होंने अंग्रेजी में आ गए और दुनिया जहाँ की को वो चीजें दी साइंस की वो उन्होंने जमा की थी, अल्लाह ने उनका मुआविन उनको बनाया था। कासिम नानोतवी साहब की है, कासिम नानोतवी साहब की है ये। मौलाना मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह किससे पढ़ी? शाहजहांपुर में कासिम नानोतवी साहब गई थी। कोई ऐसा तालिब इल्म है जिसने पढ़ी है? मानो या मत मानो। मौलाना मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत, मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत अल्लाह मुस्तका साहिब अलबैत अल्लाह थोड़ी बहुत हमने भी पढ़ी। देखिए 90 में रह के मौलाना मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? तो माशाअल्लाह इन्होंने भाई ने पढ़ा, लेकिन आपको भी हक है कि आपने पढ़े, इन्होंने पढ़ा, इन्होंने पढ़ा। पहली फुर्सत में आप पे लाज़िम है कि आप मौलाना मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़िए। जिसके इदारे में आप बैठे हैं उसको नहीं पढ़ा तो किसको पढ़ा? कल आप पढ़ोगे तो अपने आप को नबी कहेंगे बड़ी शान से। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आदिल, मौलाना आदिल नदवी और मौलाना मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह को हमने पढ़ा है। लेकिन उस परिभाषा में कर दे बयान अपना हो गया नबी आदिल जो था पढ़िए पढ़िए मैं पढ़िए मौलाना मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह को पहले फुर्सत में पढ़िए। कम से कम उसका हम ये तो नहीं कहते कि साहब उसके लिए आप सारे सवाब कर दीजिए, ये अच्छी बात है, लेकिन मौलाना का हक ये है कि आप पहले फुर्सत में मौलाना के ऊपर किताब पढ़िए। बहुत बड़ी किताब नहीं है, 250 सफ़े की किताब है, 1 से सवा घंटे में आप आराम से पढ़ सकते हैं। 250 सफ़े की किताब अक्सर 1.5 घंटे लगता पढ़ने में, उर्दू में है। ठीक है, अब दोबारा से इसको दोहरा लेते हैं। हाँ इससे ज़्यादा आपको लगता है, आपको नहीं लगता आप पढ़िए, आपकी बिल्कुल हो जाएगी। पढ़ना कोई कमाल नहीं है, आप पढ़ते नहीं हैं, आपको इसलिए लग रहा है ये पढ़ने वाले लोग हैं। बात करने की बात सुनिए, देखिए आप थोड़ा सा पीछे दोहरा लेते हैं। अकाइद का खुलासा आपके सामने आ गया, हालात उस जमाने के आपके सामने आ गए और जो चीज़ें आपकी तैयारी करने के लिए हमने की है वो आ गई। अब हमारा काम ये रह गया है कि 2 मौज़ूआत रहेंगे जिस पर हम आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह 1.5 महीने बाद हमने बताया जब ये मैंने मौका दिया। एक तो इनका अकाइद का अलग पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, और दूसरा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बशारतें की किताबों मौजूद हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। आप कुरान करीम में बशारत के बारे में खास तौर से मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू शिद्दह वाली जो आयत है तो वो आयत भी आप पढ़ के आएंगे इंशाअल्लाह, तो उसका भी आपको बड़ा फायदा होगा। और उर्दू किताबों की अपने आपको पहले से करवा दी, अरबी किताबों की पहले से करवा दी, अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा लिटरेचर है लेकिन अभी आप अंग्रेजी की हम आपको नहीं बता रहे, इंशाअल्लाह बात बताएंगे। अभी बताइए किसने लिखाया हो? तफसीर की सूरतों के लिए जो है आले इमरान है, माइदा है, सूरह मरियम है, सूरह अंबिया है। बाकी जहाँ तक तस्वीर है